morning, everyone. I hope you enjoyed the previous session. Yeah? Acha. So, how many of you understand English very extremely well? Keep it bilingual. Bilingual? Yeah. Yes. Okay. So, although my Hindi is not very good, क्योंकि मैं हैदराबाद से हूँ और मैं हैदराबादी हिंदी बोलता हूँ मैं अगर मैं वो बोलना शुरू करा तो आप लोग परेशान हो जाएंगे आप लोग हंसेंगे ज्यादा मेरी बात सुनेंगे कम समझ गए ना so it is like that okay so I'll try my best to do whatever Hindi I can ठीक है okay so let us begin so this talk is about Google search and how you can be safe on Google search ठीक है तो why this session in the first place हम क्यों Google search के बारे में आज बात कर रहे हैं तो first of all तो basically जैसा आपको पता है Google search is the biggest product of Google Google शुरू हुआ Google search से ठीक है and this is the thing that we do best we have been doing best and we still do it best right and अगर generally देखा जाए तो सारी दुनिया में we have the biggest market share in search and we work really hard to maintain the search results हम लोग ये चाहते हैं कि when a user comes to Google search and types in a query जब आप कुछ टाइप करते हैं Google में तो we make sure कि you are getting relevant results आपको जो information चाहिए वो हम दें ठीक है this is our motive ये हमारा aim है उसके साथ साथ सिर्फ relevant ही नहीं हम लोग ये भी चाहते हैं कि you get secure results safe and secure अब कुछ लोग ये पूछते हैं कि भाई मतलब Google search की बात जब आई तो how can things be unsecure या मतलब कैसे हो dangerous कैसे हो सकते हैं search में क्योंकि Google search में क्या होता है आप आते हैं और you type in a query right I mean आप कुछ keyword type करते हैं so when you type in a query Google search आपको कुछ results दिखाता है and these results are nothing but क्या होते हैं ये web pages में क्या होता है usually text right images videos या फिर animations बस यही चीजें होती हैं ठीक है how can these be harmful ठीक है तो लोगों के दिमाग में ये सवाल आता है कि भाई how can these things like text images how can they be harmful to us and that is exactly the reason why we are doing this session ठीक है and we will see कि उसका क्या क्या harm हो सकता है कैसे हो सकता है और उससे हम कैसे बच सकते हैं तो before we delve into the slides some slides देखने से पहले I will give you a little background for 5-10 minutes ठीक है I'll try to explain कि what exactly Google search is Google search काम कैसे करता है ठीक है so that आपको context समझ में आ जाए background समझ में आ जाए then you will be able to know कि भाई ये भी possible है ठीक है ऐसा भी हो सकता है क्या Google की कंट्रोल में है और क्या Google की कंट्रोल के बाहर है ठीक है what is within Google's control and what is not तो आप ये सब जान सकते हैं तो Google search है क्या Google search is nothing but an agent basically you call it an agent ठीक है agent between two things user and publishers ठीक है एक तरफ users हैं दूसरी तरफ publishers हैं publishers content generate करते हैं कुछ articles लिखते हैं images बनाते हैं videos बनाते हैं ठीक है और ये users जो search करते हैं Google क्या करता है दोनों को मिलाता है ठीक है Google is basically engine so हम लोग ये समझेंगे एक example लेके तो एक example which we have all of us have experienced in our lives this example is of that of a library एक library imagine करिए ठीक है एक library कैसी होती है समझिए कि एक बड़ी library है उसके अंदर there are thousands of books right so library में होता क्या है क्या होता है books what else magazines होते हैं newspapers होते हैं journals होते हैं basically information in different forms and formats and shapes ठीक है CDs और DVDs हो सकती हैं ठीक है अलग-अलग forms में there is information right अब imagine कि आप एक librarian हैं ठीक है आप बैठे हुए हैं librarian की तरह ठीक है तो what is your job when somebody walks in to this library and asks for a book आपसे कोई किताब पूछते हैं तो आप सर्च करते हैं और बुक लाके उनको
दे देते हैं, ठीक है। अब ये लाइब्रेरी में कई हजारों बुक्स हैं, ठीक है, और ये आपके लिए पॉसिबल नहीं है कि सारी बुक्स आप चेक करें कि कौन सी सही है कौन सी गलत है, ठीक है। तो अब ऐसा भी हो सकता है कि समझ लीजिए कि आपकी लाइब्रेरी में एक बुक है, उसका टाइटल है 101 ways of committing suicide using household items, ठीक है, 101 तरीके सुसाइड करने के घरेलू चीजें इस्तेमाल करके। तो ये बुक अच्छी है या अच्छी नहीं है? I mean, of course, this is harmful, right? I mean, situation based, okay. तो हाँ कुछ लोगों के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है। तो समझ लीजिए कि ये बुक गवर्नमेंट की तरफ से बैंड है, ठीक है। तो ये जो बुक है ये लिखी गई किसी ऑथर, मतलब किसी ऑथर ने लिखा है, या फिर कोई और ऐसे भी बुक्स होते हैं which can like cause communal riots, say for example, ठीक है, ऐसे भी बुक्स हो सकती हैं जो गवर्नमेंट या फिर ये सेंसर बोर्ड जो होते हैं वो बैन कर देते हैं, ठीक है, एंड लाइब्रेरीज आर नॉट अलाउड टू कीप दोस बुक्स। सो एक तरफ ये है कि these books are published by written by some authors, ठीक है, with something in their mind, with some motive, right, to cause harm, ठीक है, या फिर कुछ लड़ाई झगड़ा पैदा करें कम्युनिटी में, थिंग्स लाइक दैट, मोटिव इज बैड, ठीक है। तो a librarian is responsible to work with external organizations जिसके पास ये एक्सपर्टीज है कि वो जज करें कि एक बुक अच्छी है या नहीं, ठीक है, should be allowed or not, ठीक है, ये एक तरफ है। दूसरी तरफ अब समझिए कि आपकी लाइब्रेरी में बुक्स तो अच्छी हैं सब, ठीक है, लेकिन कोई एक ऐसा बंदा है, पोस्टमैन, जो आपको लाके बुक डिलीवर कर रहा है, ठीक है, वो क्रिमिनल माइंडेड है, ठीक है। वो क्या करता है, आपकी बुक में आपको डिलीवर करने से पहले आपकी बुक में, हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट एंथ्रैक्स इज? एंथ्रैक्स क्या है? एक ड्रग है, ठीक है, एंथ्रैक्स एक डिजीज है बेसिकली, वो किसी ड्रग से पैदा होता है। तो यूएस में हुआ था, ठीक है, कुछ साल पहले, ओवर अ डिकेड अगो, ठीक है, देयर वर पोस्ट सेंट, ठीक है, मेल्स भेजे गए थे, पेपर में वो ड्रग डाल दिया गया, ठीक है, इट इज नॉट विजिबल, लेकिन जैसा ही आप पोस्ट खोलो इट विल अटैक एंड यू विल फॉल सिक एंड यू विल डाई, एंड सम पीपल डाइड, एक्चुअली दिस हैपेंड। अब समझ लो कि ये पोस्टमैन इज क्रिमिनल माइंडेड, ठीक है, ये आप लाइब्रेरियन को बुक डिलीवर करने से पहले वो आप पैकेज खोलता है और ये मिला देता है, आप वो बुक लेके जाके लाइब्रेरी में रख देते हैं। अब क्या होता है, जो भी कोई बंदा अगर वो बुक लेके गया तो उसको क्या होगा, ठीक है, इट इज हार्मफुल, राइट। तो यहाँ पे हु इज द क्रिमिनल? इज इट द ऑथर ऑफ द बुक? एब्सोल्युटली नॉट। इज इट यू? एब्सोल्युटली नॉट। तो ये बेसिकली दो सिनेरियोज हैं जहां से ये हो सकता है, हार्म पहुंच सकता है। उसी तरह से नाउ व्हाट इज गूगल सर्च? व्हाट इज गूगल सर्च? इज इट एन एजेंट, अ पब्लिशर और अ यूजर? हमारा ये जो एग्जांपल है लाइब्रेरी का, उसमें से if you relate it to that example, what is Google search? It's an agent, right? Does Google produce anything itself? Content? थोड़ा बहुत कंटेंट उसका खुद का है, but most of the content जो आपको रिजल्ट्स में वो दिखाता है, that is not its own, ठीक है। So it's basically an agent, यूजर और पब्लिशर के बीच में गूगल क्या है? एक एजेंट है, just like the librarian, ठीक है। तो अभी क्या होता है, जैसे हम लोग ने देखा कि मतलब लाइब्रेरी में प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, ऑथर्स की तरफ से खुद हो सकते हैं या फिर किसी और की तरफ से भी हो सकते हैं, है कि नहीं? उसी तरह से there could be some content इंटरनेट पे, ठीक है, when you're talking about Google, अब लाइब्रेरी में से फॉर एग्जांपल आपके पास से 10,000 बुक हो सकती हैं, 25,000 बुक हो सकती हैं, 1 लाख बुक हो सकती हैं, ठीक है, we are dealing with some amount of content, but when it comes to internet, ठीक है, आप मतलब आपके अंदाजे से कितने पेजेस होंगे इंटरनेट पे? जितने गिन नहीं सकते। जितने गिन नहीं सकते हम। गिन नहीं सकते? नहीं गिन सकते हैं। कितने होंगे का अंदाजा? बिलियंस में। कितने बिलियन? बिलियन कितना होता है भाई द वे? 100 करोड़, ठीक है। तो कितने बिलियन बुक्स होंगे? नहीं पता।
ठीक है, करना पड़ेगा गूगल। गूगल अच्छा। तो बेसिकली आपको मालूम है ट्रिलियन कितना होता है? 100 करोड़। बिलियन की 100 करोड़, ट्रिलियन की 100 करोड़, 1000 करोड़, ठीक है, उतना होता है ट्रिलियन, ठीक है। अभी इंटरनेट में रफली 60 ट्रिलियन से ज्यादा पेजेस हैं, ठीक है, 60 ट्रिलियन, मोर देन 60 ट्रिलियन। So now you can imagine what task Google is dealing with, right? What amount of data. तो Google के लिए पॉसिबल नहीं है कि हर पेज पढ़े इंटरनेट पे, ठीक है, और डिसाइड करे कि भाई ये सुसाइड के बारे में या फिर किसके बारे में, ठीक है, और आपको आपके लिए सही है या गलत है, ठीक है। इसके लिए गूगल क्या करता है, जस्ट लाइक द लाइब्रेरियन, हमने जैसा एग्जांपल दिया है, इट वर्क्स विद द एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, कुछ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से या फिर कुछ एनजीओज हैं, उनके साथ, जैसे कि stopbadware.org, कितने लोगों को मालूम है stopbadware.org? हाँ, ठीक है, तो ऐसे कई ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनके साथ गूगल काम कर रहा है। इनकी हेल्प से व्हाट वी डू इज वी कीप आवर इंडेक्स, जो हमारे पास डेटा है वो सेफ रखते हैं इंटरनेट पे से जो हम रिसीव करते हैं, ठीक है। लेकिन समटाइम्स इट मे आल्सो हैपन, जैसा कि हमने दूसरा एग्जांपल लिया कि ऑथर इज नॉट द क्रिमिनल, वो पोस्टमैन क्रिमिनल हो सकता है कि नहीं। उसी तरह से देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल who can basically misuse the trust of some reputed websites. Online एक नाम बताइए बहुत अच्छी reputed website का, कोई भी एग्जाम्पल। जीमेल नहीं, एक वेबसाइट जहां पे कंटेंट है, जहां पे लोग जाकर, विकिपीडिया ले सकते हैं एग्जाम्पल, cnn.com फॉर एग्जाम्पल, विकिपीडिया, ठीक है। अब wikipedia.com क्या आप उस पर शक करेंगे? नहीं। गूगल शक करेगा? नहीं, एब्सोल्युटली नॉट, राइट। तो समझिए आप कुछ सर्च कर रहे हैं, मतलब यू टाइप इन अ कीवर्ड इन गूगल सर्च, ठीक है, और विकिपीडिया में उसके बारे में कुछ आर्टिकल है जो कि बहुत ही रेलेवेंट है, तो गूगल विल शो दैट इन दी सर्च रिजल्ट्स, यस और नो, राइट। बट व्हाट माइट हैपन हियर इज, से फॉर एग्जांपल गूगल विकिपीडिया इज हैक्ड, किसी ने विकिपीडिया को हैक कर लिया। अब क्या हो सकता है, ठीक है, गूगल का ट्रस्ट विकिपीडिया में है, इसलिए वो रिजल्ट में बता रहा है, आपका ट्रस्ट विकिपीडिया में, इसलिए आप खोल के पढ़ रहे हैं, ठीक है। नाउ एनीथिंग कैन हैपन, जब आप पेज खोल दें तो हो सकता है कि वो जिसने हैक किया हो उसने मॉलवेयर ऐड कर दिया पेज के अंदर, या फिर कुछ और कर दिया जिससे आपको नुकसान पहुंच सकता है, ठीक है, इट कुड बी हार्मफुल टू यू। सो दीस काइंड ऑफ थिंग्स मे आल्सो हैपन। सो दिस इज द सेकंड टाइप ऑफ डेंजर दैट इज अवेलेबल ऑनलाइन, जो इंटरनेट पे होता है। तो आज हम स्लाइड्स में देखेंगे कि हाउ टू बी सेफ फ्रॉम दिस, ठीक है, जो हैक होती हैं वेबसाइट्स, ठीक है, व्हाट गूगल डज टू प्रोटेक्ट यू एंड हाउ टू आइडेंटिफाई दोज वेबसाइट्स एंड स्टफ लाइक दैट। सो हियर इज अवर एजेंडा। तो हम देखेंगे आज कि भाई व्हाट एग्जैक्टली हैक मींस, ठीक है, हैक किसको कहते हैं, ठीक है, आप वेबसाइट देखें तो पहचाने कैसे कि हैक है या नहीं, और उसके बाद हम देखेंगे कि भाई एक हैकर हैक करता क्यों है, ठीक है, व्हाट इज द मोटिव ऑफ अ हैकर, व्हाई डज इट हैक अ वेबसाइट, और वो क्या क्या कर सकता है, ठीक है। जैसे कि 3 किस्म की चीजें हो सकती है व्हेन हैकर हैक्स अ वेबसाइट। उसका मोटिव हो सकता है कि वेब स्पैम फैलाएं, या फिर फिशिंग के लिए, या फिर मॉलवेयर के लिए। हम लोग देखेंगे ये सारी चीजें क्या क्या है इंडिविजुअली। उसके बाद हम देखेंगे कि व्हाट इज द गूगल्स रिस्पांस जब ये चीजें होती है, व्हेन अ हैकर हैक्स अ वेबसाइट, हाउ डज गूगल रिस्पॉन्ड, गूगल क्या करता है आप लोगों को सेफ रखने के लिए, ठीक है। और जो वेबसाइट ओनर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल विकिपीडिया का एग्जांपल हमने लिया, विकिपीडिया का जो ओनर है, ठीक है, व्हाट कैन दैट ओनर डू, वो अपनी वेबसाइट क्लीन करने के लिए, एक बार हैक हो गई, मॉलवेयर उसमें मिल गया से फॉर एग्जांपल, अब उसको क्लीन करने के लिए क्या कर सकते हैं, और गूगल कैसे उसकी हेल्प करता है, ठीक है। वी विल आल्सो सी दैट, एंड वी विल आल्सो सी कि आप लोग, हम लोग यूजर्स, अगर कोई ऐसा वेबसाइट मतलब हमको मिले कि जो हैक या फिर हार्मफुल हो सकती है, तो हम लोग ये सब कैसे गूगल को रिपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है, हेल्पिंग कीपिंग द कम्युनिटी सेफ, ये सारी चीजें हम देखेंगे। तो सबसे पहले हैक वेबसाइट्स
दिखती कैसे हैं, ठीक है, व्हाट इज हैक मीन्स। सो ये एक, दिस इज जस्ट वन एग्जांपल, ठीक है, ऐसे टन्स ऑफ एग्जांपल्स हैं जो आपको ऑनलाइन मिल सकते हैं हैक वेबसाइट्स कैसे होते हैं। तो एक वन थिंग दैट यू कैन आइडेंटिफाई हैक वेबसाइट्स विद, एक चीज ये है कि फॉर एग्जांपल आप एक वेबसाइट विजिट कर रहे हो, से फ्लावर्स की वेबसाइट, ये वेबसाइट बेचती है फ्लावर्स, यू कैन बाय फ्लावर्स ऑनलाइन। अब इसके ऊपर से फॉर एग्जांपल देयर आर इररिलेवेंट कीवर्ड्स, जैसा कि फॉर एग्जांपल सॉकर गियर के बारे में, फुटबॉल गियर के बारे में, या फिर क्रिकेट गियर के बारे में कुछ लिखा हुआ है इसके ऊपर, कीवर्ड्स हैं, ठीक है, रैंडम, और जब आप वो पढ़ें तो इट डजंट मेक सेंस, राइट। इसके अंदर भी इट इज वेरी स्मॉल टू रीड, बट आई ट्राई टू रीड फॉर यू। The paragraph says, Cialis prize in Australia, the people study at many exposed, full stop. B14 enhanced, work to prevent dot, diabetics, complication of that rare, should top in exams to prevent or buy Cialis 10 grams from peer-reviewed researchers. Does this make sense? No. कुछ समझ में आया आपको? नहीं. नहीं आया? This is called gibberish, ठीक है? तो ये किस्म की समथिंग लाइक दिस कुड बी रिटन ऑन द वेब पेजेस, ठीक है, या फिर इसके अलावा देयर कुड आल्सो बी लिंक्स। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड पे देखेंगे तो रेड में वहां पे कुछ लिंक्स हैं रेड कलर में, ठीक है, तो उसमें लिखा हुआ है बाय सियालिस, सियालिस फॉर चीप प्राइस एटसेट्रा। सियालिस बेसिकली एक ड्रग है जो लोग यूज करते हैं। तो और ये जो मैं वेबसाइट से जो लिया ये पेज, this example, it actually belongs to a website which is an educational website, ठीक है, बच्चों की एजुकेशनल वेबसाइट है। उसके ऊपर ये सब लिखने का मकसद क्या है, ये कौन लिख सकता है, ठीक है, तो वो जो ऑर्गेनाइजेशन जो चला रहे हैं लोग, जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो चला रहे हैं, वो लोग तो ये सब नहीं लिखेंगे, ठीक है। सो हु हैज रिटन दिस एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस, ठीक है। तो यू कैन आइडेंटिफाई हैक वेबसाइट्स बाय दिस काइंड ऑफ थिंग। तो समटाइम्स व्हाट हैपेंस is this type of content is visible, आपको दिख जाता है, जैसे आप पेज खोलें दिख जाता है। Sometimes it is hidden, क्योंकि हैकर भी होशियार है, ठीक है, वो नहीं चाहता कि आप उसको पकड़ लें, तो sometimes it hides this content जो यूजर को नहीं दिखता है, ठीक है। If you open a website, you may not see anything wrong with it, you will see all the content, but पीछे में ये सब कुछ हो सकता है, ठीक है, पीछे में ये सब कुछ हो सकता है और बहुत कुछ हो सकता है, जैसे हम देखेंगे, ठीक है। तो चूंकि गूगल एक कंप्यूटर है, ठीक है, हम इसको प्रोग्राम कर सकते हैं ये सब चीजें डिटेक्ट करने के लिए, उसी तरह से गूगल ये सब डिटेक्ट कर पाता है, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल है हैक वेबसाइट्स दिखती कैसे, ठीक है। अब हम देखेंगे कि वेबसाइट्स हैक लोग करते क्यों हैं, ठीक है, व्हाट इज द मोटिव बिहाइंड हैकिंग वेबसाइट्स। तो प्राइमरी फोकस हर किसी का होता है पैसा, ठीक है, दे आर फाइनेंशियली मोटिवेटेड, ठीक है, हमको पैसा बनाना है, ठीक है, दैट इज द प्राइमरी मोटिव। और वो मोटिव को पूरा करने के लिए 3 स्ट्रेटजी अपना सकते हैं लोग, ठीक है। एक हो सकता है कि स्पैमी कंटेंट ऐड करे कोई वेबसाइट पे, कोई रेप्यूटेड वेबसाइट पे, जैसा कि हमने पिछले स्लाइड में देखा, जिबरिश ऐड किया उन्होंने और कुछ लिंक्स ऐड कर दिए। हम लोग ये भी जानेंगे कि वो लिंक्स का सिग्निफिकेंस क्या है, वो कीवर्ड्स का, वो कंटेंट लिखने का, वो हैकर ने उसका क्यों किया, वो भी अभी देखेंगे कुछ ही देर में, ठीक है। तो एक मोटिव होता है कि स्पैमी कंटेंट ऐड करेंगे। दूसरा मोटिव हो सकता है कि फिशिंग अटैक्स एग्जीक्यूट करें। व्हाट इज फिशिंग? सॉरी, मछली पकड़ना, ठीक है, दैट इज वन फिशिंग। वो फिशिंग होता है एफ से, ठीक है, FISHING। ये फिशिंग है P से। सो व्हाट इज दिस फिशिंग? बैंक अकाउंट हैक करते हैं, taking into a wrong website, showing that it is the right, right, absolutely right, that is the correct definition। तो बेसिकली फिशिंग में ये होता है कि आपको धोखा दिया जाता है, ठीक है, दिखने में सही दिखता है but हाँ, it is not the right एब्सोल्युटली। तो आपको बताया ऐसा जाता है कि ये ओरिजिनल वेबसाइट है। सो फॉर एग्जांपल अगर आपने टाइप किया ICICI बैंक, ठीक है, गूगल सर्च में, हो सकता है कि एक वेबसाइट आए जो ICICIbank.com के जैसी लगे, लिखा हुआ है कि ICICIbank.com लिखा हुआ है, लेकिन एक्चुअली वो ICICI नहीं है, ठीक है, इट इज LCLCI
bank.com है, आई की जगह उन्होंने एल लिख दिया, तो आपको वो पहचाना नहीं जाएगा, ठीक है। या बैंक में एन की जगह एम लिख दिया, ठीक है, माइनर, ठीक है। आप जब उसको पढ़ेंगे तो एक एक लेटर तो नहीं पढ़ेंगे, यू विल जस्ट रीड इट, ठीक है, आप ऐसे ही पढ़ देंगे और आप समझेंगे कि ICICIbank.com ही है, आप क्लिक कर देंगे और वहां पे होगा एग्जैक्टली पेज जैसा ICICIbank.com पे दिखता है, ठीक है, आपका यूजर आईडी एंड पासवर्ड। जैसे ही आप टाइप करेंगे वो इंफॉर्मेशन किसके पास जाएगा, हैकर के पास जाएगा, ठीक है। सो दिस इज काइंड ऑफ अ फिशिंग। तो ये करने के लिए भी लोग वेबसाइट्स हैक करते हैं। और एक चीज है मॉलवेयर, राइट। मॉलवेयर इंस्टॉल करने के लिए, वहां मॉलवेयर स्प्रेड करने के लिए कंप्यूटर्स में, उसके लिए भी हैक हो सकता है। तो अब हम देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल कि स्पैमी कंटेंट कैसे होता है, क्यों ऐड करते हैं, क्या क्या उसके पीछे रीजंस हैं। सॉरी, क्वेश्चन? अच्छा, तो ये जो स्पैमी कंटेंट, ये जो बिहेवियर है स्पैमी कंटेंट ऐड करना, ठीक है, वो बेसिकली प्राइमरी रीजन उसका ये होता है, जैसे कि हमने फर्स्ट स्लाइड में देखा एग्जांपल, राइट, ब्लैक पेज, उसके ऊपर कुछ जिब्बरिश लिखा हुआ है और कुछ लिंक्स ऐड किए उस एजुकेशनल वेबसाइट पे Cialis के बारे में, जो एक ड्रग है, ठीक है। वो क्यों होता है, ताकि सर्च इंजन जैसे कि गूगल सर्च इंजन है, उसको धोखा दिया जाए, ताकि सर्च इंजन समझे कि ये पेज एक्चुअली एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का पेज नहीं है, लेकिन ये ड्रग बेचने का पेज है, ये Cialis बेचने का पेज है, ठीक है। तो अभी कोई अगर टाइप करता है Cialis, ठीक है, बाय Cialis और व्हाटएवर, तो हो सकता है कि वो पेज आ जाए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का पेज रैंक कर दिया जाए, क्योंकि गूगल समझेगा कि ये एक्चुअली पेज Cialis बेच रहा है, ठीक है। तो उसके लिए, तो ये टेक्निक को जनरली कहते हैं वेब स्पैम, ठीक है। So the definition is, the exact definition is trying to trick search engines into ranking pages highly, right, for certain keywords, ठीक है। अब हम एक एग्जांपल लेंगे। अब कल कौन सा दिन है? अच्छा, गुड आंसर। अच्छा, कल सारी दुनिया में क्या मनाया जा रहा है? वैलेंटाइंस डे, राइट, 14 फरवरी, ठीक है। तो कल वैलेंटाइंस डे है। अब समझ लीजिए, रियल लाइफ एग्जांपल लेंगे हम, ठीक है। तो ये समझिए कि फॉर एग्जांपल आपने नई दुकान खोली, एक गिफ्ट शॉप, ठीक है, आपकी गिफ्ट शॉप है जो बिल्कुल नई है, लोगों को पता नहीं है कि ये मोहल्ले में ये गिफ्ट शॉप है, लेकिन वही मोहल्ले में एक फ्लावर शॉप भी है जो काफी जमाने से वहां पे है, एंड इट इज वेल नोन, ठीक है, सबको पता है कि यहाँ पे फ्लावर शॉप है। तो एक टैक्टिक आप ये यूज कर सकते हैं, आपका बिजनेस कल के दिन बढ़ाने के लिए, आपकी गिफ्ट शॉप का बिजनेस जो नई दुकान है, ठीक है, आप ये कर सकते हैं कि वहां पे फ्लावर शॉप के पास आपका बैनर लगा दें, ठीक है, गिफ्ट शॉप इन नेक्स्ट लेन से फॉर एग्जांपल, ठीक है, एरो डाल के, तो ऑटोमेटिक आपकी पब्लिसिटी हो गई, हुई कि नहीं? लोग जब गिफ्ट वो फ्लावर खरीदने आएंगे, हो सकता है कि वो गिफ्ट भी खरीद लें क्योंकि वैलेंटाइंस डे है, ठीक है, और उनको पता चल जाएगा नेक्स्ट लेन में ही है, ठीक है। उस तरह से आपके पास ट्रैफिक आएगी, लोग आना शुरू हो जाएंगे। तो व्हाट यू आर डूइंग इज बेसिकली यूजिंग द रेप्यूटेशन, फ्लावर शॉप का जो रेप्यूटेशन है वो यूज करके आप अपने आप के पास कस्टमर्स ला रहे हैं, ठीक है। दिस इज वन टेक्निक, राइट। नाउ देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दिस टेक्निक, राइट। अब जब हम रियल लाइफ एग्जांपल पे देख रहे हैं, हो सकता है कि भाई आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन अब ऐसा भी हो सकता है कि कोई क्रिमिनल माइंडेड आदमी है, ठीक है, व्हाट ही डज, अब समझ लीजिए कि आपकी फ्लावर गिफ्ट शॉप नहीं है, आपकी भी एक फ्लावर शॉप है नेक्स्ट लेन में, नई फ्लावर शॉप है। अब आप क्या करेंगे, आप अब समझिए वहां से ट्रैफिक आ रही है, ये ओल्ड फ्लावर शॉप यहाँ पे है, ठीक है, और आपकी फ्लावर शॉप यहाँ पे है, से फॉर एग्जांपल, या फिर आपकी फ्लावर शॉप आगे है, आप आगे ही एक बैनर लगा देंगे वो फ्लावर शॉप के नाम से, फॉर एग्जांपल देवदास फ्लावर शॉप, देवदास फ्लावर शॉप मूव्ड हियर, ठीक है। आप अपनी दुकान के सामने, वो लोग वो दुकान को पहुंचने से पहले आप ये बैनर लगवा दिए, ठीक है, कि वो शॉप यहां मूव हो गई, और आप अपनी दुकान पे नाम लगवा दिया देवदास फ्लावर शॉप। तो लोग क्या समझेंगे, अरे वो जो पुरानी दुकान जो है वो यहाँ पे मूव हो गई, सब लोग आपके पास आ जाएंगे।
ये करना सही है या गलत है? बिल्कुल गलत है। ये धोखा है कि नहीं है? तो इंटरनेट पे भी ये होता है, ठीक है, इसी तरह से धोखा दिया जाता है। तो मैं समझाऊंगा बेसिकली गूगल सर्च काम कैसे करता है, ठीक है। तो हमको समझना है कि ये धोखा कैसे दिया जा सकता है ऑनलाइन। तो गूगल सर्च क्या करता है, गूगल सर्च का खुद का कोई कंटेंट है नहीं, ठीक है। गूगल सर्च जैसे हमने वी हैव डिसाइडेड, आई मीन वी हैव टॉक्ड अबाउट कि इट इज एन एजेंट, ठीक है। कई लोग ऑनलाइन कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं एंड गूगल व्हाट इट इज ओनली फैसिलिटेटिंग सर्च, ठीक है। आपको जो भी कंटेंट चाहिए वो आप जब सर्च करते हैं तो वो आपको कंटेंट लाके देता है। इट इज ओनली एन एजेंट, ठीक है। नाउ जैसा कि हमने एग्जांपल लिया विकिपीडिया का, एक बहुत ही रेप्यूटेड वेबसाइट है, काफी लोग उसको ट्रस्ट करते हैं, ठीक है। ये उसी पुरानी देवदास फ्लावर शॉप की जैसी है, ठीक है। सब लोगों को मालूम है कि ये है और अच्छी दुकान है, ठीक है, और उसके पास सब कुछ सही होता है वहां, ठीक है। उसी तरह से ये वेबसाइट है। तो बाज लोग क्या करते हैं, जो हैकर्स होते हैं ऑनलाइन, विकिपीडिया को हैक करते हैं, ठीक है। और गूगल तो रैंक करेगा विकिपीडिया को कोई भी रिलेवेंट क्वेरी के लिए, ठीक है। तो ये हैकर क्या करता है, व्हेन वंस इट हैक्स दिस विकिपीडिया पेज, इट विल राइट सर्टेन कोड एंड इंसर्ट दैट कोड इन दिस पेज। ये पेज में एक कोड डाल देता है, ठीक है, जिससे ऑटोमेटिक आपका ब्राउजर जो है, जैसा ही वो पेज ओपन हो विकिपीडिया का, आपका ब्राउजर ऑटोमेटिक उसको रीडायरेक्ट कर देता है, ठीक है। कहां पे? वो हैकर की वेबसाइट पे। समझ गए आप? तो इसको कहते हैं रीडायरेक्शन, ठीक है। तो अगर आप गूगल सर्च में जाएं, और गूगल सर्च इसीलिए आपको दिखाता है ग्रीन कलर में URL, द डेस्टिनेशन URL आपको दिखता है वहां पे, है कि नहीं? गूगल सर्च रिजल्ट का जो पेज होता है वहां पे ग्रीन कलर में URL दिखता है। तो अगर आपको दिखाया एक URL जा रहा है और आप पहुंच रहे हैं दूसरे URL में, ठीक है। URL कहां पे देख सकते हैं जनरली बाय द वे? ब्राउज़र में एड्रेस बार में, ठीक है। और हम कहां रीडायरेक्ट हो रहे हैं वो कहां पे देख सकते हैं? नीचे, राइट। उसको कहते हैं स्टेटस बार, राइट। स्टेटस बार में अगर आप गौर करें तो देयर यू कैन सी कि वेयर इट इज हॉपिंग, ठीक है। रीडायरेक्शन एक वेबसाइट से दूसरी से तीसरी पे चौथी पे हो सकता है, ठीक है। तो वो थोड़ा सा सोचने की बात हो जाती है फिर, ठीक है। अगर आप इफ यू आर बीइंग रीडायरेक्टेड समवेयर एल्स, फिर आप थोड़ा सा ये देख लें और समझ जाएं कि भाई आर यू लैंडिंग अपॉन द डिजायर्ड वेबसाइट और नॉट, ठीक है। तो ये एक मोटिव होता है टू एनेबल रीडायरेक्ट्स किसी और, जैसे कि वो फ्लावर शॉप का एग्जांपल है, भाई बैनर लगा दो इसकी दुकान के सामने, उसके पास जाने वाले सारे कस्टमर्स मेरे पास आ जाएंगे, ठीक है, और मैं जो चाहूं उसको बेचूं, ठीक है। इस तरह से दूसरी टेक्निक होती है कि लिंक्स डाल दें, ठीक है। अब रीडायरेक्ट का एग्जांपल तो हम देख नहीं सकते क्योंकि वो एक मोशन वाली चीज है, ठीक है, स्लाइड में देख नहीं सकते हम, तो इसीलिए अब ये एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं जहां पे इन्होंने क्या किया, ये लिंक्स डाल दिया है, ठीक है। तो अब आप ये लिंक्स देखेंगे, ये कोई वेबसाइट को जाएंगे जहां पे वो कुछ बेच रहा है, ठीक है। तो ये लिंक्स क्यों होती है वेबसाइट में? तो अब हम थोड़ा सा जानेंगे कि गूगल सर्च काम कैसे करता है, हाउ इट वर्क्स, ठीक है। हाउ मेनी ऑफ यू नो ऑफ पेज रैंक? व्हाट इज पेज रैंक? नहीं पता है, ठीक है। तो इंटरनेट पे जैसा कि हमने अभी बताया कि मतलब मोर देन 60 ट्रिलियन पेजेस, देयर मोर देन 60 ट्रिलियन पेजेस, राइट। तो आप कुछ भी सर्च करें, ठीक है, इट इज पॉसिबल, मोस्ट लाइकली कि देयर आर एटलीस्ट डजन्स ऑफ रिजल्ट्स, ठीक है। कई मतलब फॉर एग्जांपल एटलीस्ट 100 200 या 1000 2000 रेलेवेंट टॉपिक्स के पेजेस आ ही जाएंगे, ठीक है। आप कुछ भी कीवर्ड मारें, ठीक है, आ ही जाएंगे। अब गूगल को ये डिसाइड करना होता है कि व्हाट इज द मोस्ट रेलेवेंट, सबसे ज्यादा रेलेवेंट ये 2000 पेजेस में से कौन सा पेज है। तो सबसे ज्यादा रेलेवेंट, सबसे ज्यादा यूजफुल पेज जो यूजर को होता है वो गूगल ट्राइज, बेसिकली गूगल कोशिश करता है कि वो फर्स्ट पोजीशन पे दिखाए, है कि नहीं? आप भी वही चाहेंगे ना कि सबसे बेस्ट, सबसे रेलेवेंट जो रिजल्ट है वो सबसे ऊपर दिखे।
ठीक है, अगर आपको irrelevant results दिखें तो you will stop using Google search. Yes sir. So Google tries for that. अब ये Google डिसाइड कैसे करता है कि मतलब 2000 में से कौन से 10 पेजेस हैं. Google बेसिकली 10 बताता है पेजेस, राइट? On the first page it shows 10 results. ठीक है, तो कौन से 10 results ये 2000 में से हैं which deserves the position on the first page. सबसे ज्यादा relevant कैसे, ये कैसे डिसाइड होता है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से. ठीक है, तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, गुड पॉइंट. सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो होता है वो एक तरीका है वेबसाइट ओनर्स के लिए, ठीक है, कि अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करें ताकि उसको सर्च इंजन जैसे कि गूगल सर्च है वो ठीक तरह से समझ जाए. ठीक है, और जब गूगल समझ सकता है एक पेज को उस तरह से रैंक भी कर सकता है वो पेज को. ठीक है, तो वो तो हो गया वेबमास्टर की तरफ से, the owner of the website. The owner of the website would do SEO. ठीक है, अब from the Google side, I'm asking from the Google side, Google कैसे डिसाइड करता है कि भाई कौन सा पेज सबसे रिलेवेंट है? ठीक है, how does it understand? ठीक है, तो it basically looks for more than 200 different signals on any page. 200 से ज्यादा सिग्नल्स की वो जांच पड़ताल करता है. ठीक है, कोई भी पेज पे. जैसा कि एक एग्जांपल, अगर एक पेज है जो बात कर रहा है फॉर एग्जांपल फ्लावर्स के बारे में, ठीक है, रेड रोज, स्पेसिफिकली रेड रोजेस के बारे में. ठीक है, तो व्हेन दिस पर्सन इज राइटिंग द आर्टिकल अबाउट रेड रोजेस, व्हाट इज द नॉर्मल फॉर्मेट ऑफ राइटिंग एन आर्टिकल? आप जब लिख रहे हैं तो यू विल हैव अ रेलेवेंट हेडलाइन. ठीक है, उसके अंदर आ जाए कि भाई रेड रोजेस कीवर्ड्स आ जाएंगे उसके अंदर. ठीक है, तो Why are red roses so beautiful? ये टॉपिक है फॉर एग्जाम्पल. ठीक है, तो दिस विल बी द हेडलाइन. Why are red roses very beautiful? Say for example. अब on the web page there is also something called the title of the page. कहाँ पे होता है टाइटल? This is different from the heading. एड्रेस बार के ऊपर, सबसे ऊपर. ठीक है, सबसे ऊपर अगर आप इंटरनेट एक्सप्लोरर में देखें तो एक ब्लू बार होता है, फायरफॉक्स में ब्लू बार होता है. ठीक है, क्रोम में वो टैब के अंदर ही लिखा होता है. ठीक है, दैट इज द टाइटल ऑफ द पेज. तो टाइटल भी यूजुअली हेडिंग के बराबर होता है. ठीक है, द टाइटल बेसिकली डिस्क्राइब्स व्हाट द पेज इज अबाउट. तो एक टाइटल एक सिग्नल है गूगल के लिए. तो गूगल देखेगा कि अरे रेड रोजेस, ये बंदा सर्च कर रहा है रेड रोजेस के लिए. ठीक है, तो रेड रोजेस क्या टाइटल में मेंशन किया गया है, क्या हेडलाइन में मेंशन किया गया है? अगर हेडलाइन में मेंशन किया गया है तो उसका मतलब ये है कि आर्टिकल सारा रेड रोजेस के बारे में. ठीक है, और इस तरह से कई सिग्नल्स होते हैं जो गूगल सर्च देखता है. उसमें से एक सिग्नल, और जो इंपॉर्टेंट सिग्नल है वो ये है कि समझ लीजिए ये एक पेज है जो रेड रोजेस के बारे में, उसके ऊपर आर्टिकल लिखा हुआ है व्हाई आर रेड रोजेस सो ब्यूटीफुल. ठीक है, इसी टॉपिक पे और 100 लोगों ने लिखा है. ठीक है, और 100 लोगों ने लिखा है. अब सारे 100 आर्टिकल्स में रेड रोजेस जो कीवर्ड है वो टाइटल में भी है, हेडलाइन में भी है, कंटेंट में भी है, सारे पेजेस रिलेवेंट हैं. अब गूगल ये डिसाइड कैसे करें कि भाई सबसे अथॉरिटेटिव, सबसे क्रेडिबल आर्टिकल कौन सा है, सबसे अच्छा लिखा हुआ आर्टिकल कौन सा है? इसके लिए वो रिलाई करता है इंटेलिजेंस पे. कौन सी? द डेमोक्रेटिक नेचर ऑफ वेब. ठीक है, तो इंटरनेट पे क्या होता है, समझ लीजिए आपका एक पेज है, आपकी एक वेबसाइट है. ठीक है, अगर आप कुछ आर्टिकल लिख रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, ठीक है, और समझ लीजिए कि आपको किसी का रेफरेंस देना है, किसी दूसरे पेज का आपके पेज के ऊपर रेफरेंस देना है ताकि यूजर जब आपके पेज पे आए, ठीक है, when they come to your site they can click on that link and go and read the destination page for more information. For example, तो आप कौन से पेज को लिंक करेंगे? अब आपके सामने भी समझिए 10 पेजेस हैं. ठीक है, जो टाइप के इंफॉर्मेशन आप लिंक करना चाह रहे हैं उस टाइप के 10 पेजेस हैं. एक है विकिपीडिया का आर्टिकल और बाकी 9 हैं, आप जानते नहीं है किसने लिखा है वो, ऐसे ब्लॉग स्पॉट के ब्लॉग्स हैं या फिर कुछ हैं. ठीक है, तो आप कौन से पेज को लिंक करेंगे? विकिपीडिया, राइट. तो आप जब आप खुद आर्टिकल लिख रहे हो तो आप विकिपीडिया पेज को लिंक करेंगे क्योंकि यू नो इट इज द मोस्ट अथॉरिटेटिव पेज. ठीक है, तो दिस इज काउंटेड एज वन वोट. ठीक है,
तो इंटरनेट पे एक बंदे ने इसको वैल्यू दी है, इसको समझा कि ये वैल्यूएबल है, इसलिए इसको लिंक किया है। तो समझ लीजिए, अब जैसे हम बात कर रहे थे, why are red roses so beautiful, this article, there are 100 pages, 100 में से गूगल को सर्च करना है 10, तो वो एक सिग्नल ये देखता है कि ये 100 में से वो एक पेज कौन सा है जिसको सबसे ज्यादा लोगों ने लिंक किया है। मेक सेंस और नॉट? यस और नो? So if more people have linked to this web page, it means कि more people have recognized its value. Yes or no? ठीक है, ज्यादा लोगों ने इसका रेफरेंस दिया है, इसका मतलब ये अच्छा पेज है। In conjunction with other 199 signals, more than that actually. ठीक है, इस तरह से गूगल डिसाइड करता है। तो ये हैकर्स क्या करते हैं? What these hackers do? विकिपीडिया पेज फॉर एग्जांपल, अब गूगल ये भी देखता है बाय द वे, नॉट जस्ट द नंबर ऑफ लिंक्स, वो लिंक्स की क्वालिटी क्या है, किन लोगों ने इसको इनका रेफरेंस किया है। ऐसा भी हो सकता है, एक दूसरा एग्जांपल लेंगे हम, समझिए कि एक प्रोजेक्ट है, ठीक है, हम सब स्टूडेंट्स हैं किसी यूनिवर्सिटी में, एक प्रोजेक्ट है आया हुआ है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स को एक प्रोजेक्ट करना है, ठीक है, और वहाँ का जो प्रोफेसर है उसने कहा कि भाई ये उसी को अवार्ड किया जाएगा, ये प्रोजेक्ट जिसको सब लोग समझते हैं कि वो बंदा इस प्रोजेक्ट के काबिल है, ठीक है। तो वोटिंग सिस्टम है कि भाई 4 नॉमिनेशंस हैं, 4 लोग इसके लिए नॉमिनेट हुए हैं, आप सब लोग वोट कीजिए कि ये प्रोजेक्ट किसको अवार्ड किया जाए, कौन ये प्रोजेक्ट पे काम करेगा। तो समझ लीजिए आपके फ्रेंड्स जो हैं, आपके पीयर्स, आपके जो फेलो स्टूडेंट्स, क्लासमेट्स हैं, एक बंदे के लिए 10 लोगों ने वोट किया, ठीक है। दूसरे बंदे के लिए सिर्फ 5 लोगों ने वोट किया, लेकिन ठीक है, नंबर ऑफ वोट्स अगर देखा जाए तो ये बंदे के लिए नंबर ऑफ वोट ज्यादा है 10, ये बंदे के लिए सिर्फ 5, लेकिन इसको जिसने 10 बंदों ने वोट किया है ये सब इसके क्लासमेट्स हैं। ये जो 5 लोग इसको वोट किए हैं, ठीक है, these are all professors, ठीक है। तो who do you think the project will go to? Right, 5, right? Because it is not the number, it is the quality of those numbers as well. तो exactly यही होता है, Google search also work exactly the page rank system, which is one of the more than 200 signals by the way, ठीक है। ये एक सिग्नल उस तरह से काम करता है कि ये देखता है कि कितने लोगों ने ये एक पेज को लिंक किया है, उसको इतने वोट मिल गए। उसके बाद वो ये भी देखता है कि भाई ये ईच वोट की वैल्यू क्या है, हु हैज लिंक टू इट, ठीक है, कितनी अथॉरिटी, उस बेसिस पे वो डिसाइड करता है कि भाई ये पेज को किस पोजीशन पे रैंक किया जाए, ठीक है। जैसे हमने देखा था कि रेड रोजेस कोई सर्च कर रहा है, देयर वर 100 पेजेस रिलेवेंट। अब कोई ना कोई एक पेज उसमें से ऐसा होगा जिसके पास बहुत ज्यादा लिंक्स हैं और बहुत ज्यादा क्वालिटी लिंक्स हैं, ठीक है, तो वो पेज आ जाएगा नंबर 1 पोजीशन पे, राइट। तो अब ये हैकर्स क्या करते हैं? तो अब ये समझाने का मतलब यही है कि मतलब हैकर्स ये काम क्यों करते हैं जो आप यहाँ देख रहे हैं, ठीक है, वो सब जिबरिश है और इतने सारी लिंक्स वो लोग डाल दिए हैं ये पेज पे, ठीक है। तो अब हैकर्स क्या कर सकते हैं? समझ लीजिए एक नई मैं हैकर हूँ और मैं एक नई वेबसाइट लॉन्च किया, वो वेबसाइट पे मैं फ्लावर्स बेच रहा हूँ, कल वैलेंटाइंस डे है, मेरे पास टाइम बहुत कम है, ठीक है। अब मुझे वो रेप्यूटेशन गेन करना है इंटरनेट पे, ताकि गूगल जब कोई आके सर्च करे कि भाई बाय रेड रोजेस, ठीक है, बाय रेड रोजेस इन न्यू दिल्ली से फॉर एग्जांपल, किसी ने अगर सर्च किया तो मेरी वेबसाइट फर्स्ट रैंक पे आ जाए, फर्स्ट पोजीशन पे। कैसे आ सकती है? ठीक है, देयर आर मेनी अदर वेबसाइट्स जो पुरानी हैं which already have some reputation, जो which will outbeat me, of course it's a natural process, right? क्योंकि बहुत लोगों ने उनको लिंक ऑलरेडी कर चुका है, अब मैं वो लिंक्स कैसे हासिल कर सकता हूं, ठीक है। तो what I will do, I will go and hack very reputed websites like Wikipedia को हैक कर लिया मैं, CNN.com, AVN.com, etc. सारी जो बड़ी वेबसाइट्स हैं, I will hack them and I will place a link to my own website on those pages. मैं जाके अपना लिंक उन लोगों की वेबसाइट में डाल दूंगा, उन लोगों की नॉलेज के बगैर, ठीक है। They will not know कि I have put a link. तो अब क्या हो गया, when Google comes to see those pages, वो देखता है कि अरे भाई ये वेबसाइट को CNN ने लिंक किया है, ये वेबसाइट को Wikipedia ने लिंक किया है, right? Oh, this is a very reputed website.
तो इस तरह से what I can do using automated systems, I can generate, say for example, 10,000 links within a night. Overnight, I will generate 10,000 quality links to my own website because I have hacked 10,000 web pages on the internet. You get it? So this is the technique people do. तो इसीलिए हैक होते हैं वेबसाइट्स, रेप्यूटेड वेबसाइट्स, पीपल आर बिहाइंड रेप्यूटेड वेबसाइट्स बिकॉज ऑफ दिस. अगर मैं हैक कर लिया और कल एक दिन अगर मैं फर्स्ट पोजीशन पे रैंक हो गया बाय रेड फ्लावर्स के लिए, मेरा बिजनेस बन गया है कि नहीं? सो दिस इज द काइंड ऑफ स्ट्रेटजीज इन्वॉल्वड. तो इसीलिए लोग वेबसाइट्स हैक करते हैं वेब स्पैम के लिए. नाउ द अदर कैटेगरी, राइट? तो हम लोगों ने कितनी चीजें देखी थी? द मोटिव्स ऑफ द हैकर, व्हाट वर दे? वेब स्पैम, फिशिंग एंड मॉलवेयर, राइट? तो हमने वेब स्पैम कवर कर लिया. एनी क्वेश्चंस? यस. अरे इतनी जल्दी कैसे पॉसिबल है, राइट? तो गुड क्वेश्चन. तो बेसिकली भाई का सवाल है कि मतलब इंटरनेट पे 60 ट्रिलियन पेजेस हैं, ठीक है? अब गूगल उनमें से ये कैसे डिसाइड करता है इतनी जल्दी कि अब आपने टाइप किया बाय रेड रोजेस इन न्यू दिल्ली, तो इसके लिए रिलेवेंट पेजेस कौन से हैं? तो 60 ट्रिलियन पेजेस में हर किस्म के पेजेस हैं, हर टॉपिक पे पेजेस हैं. हाउ डज गूगल डिसाइड कि व्हाट पेज इज रिलेवेंट, राइट? ठीक है, हाँ एब्सोल्युटली. और कितने ईच ड्रॉप पे हो, तो आप इंस्टेंट सर्च की बात कर रहे हैं, ठीक है? इंस्टेंट सर्च कितने लोगों को पता है यहाँ पे? ओके, वेरी फ्यू पीपल. ठीक है, तो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट हाउ गूगल वर्क्स देन आई विल कम टू इंस्टेंट सर्च. तो गूगल जो है बेसिकली एक सिस्टम है गूगल के पास दैट इज नोन एज क्रॉलिंग. ठीक है, टेक्निकली उसका नाम है क्रॉलिंग. तो ये क्रॉलिंग सिस्टम में होता क्या है? बेसिकली गूगल जो है हमेशा राइट नाउ इस वक्त भी गूगल बिजी है क्रॉल करने में इंटरनेट पे. तो ये प्रोसेस बेसिकली होता है इंटरनेट पे कंटेंट डिस्कवर करने का. ठीक है, अगर हम हमारे लाइब्रेरी के एग्जांपल पे गए वापस, ठीक है, तो एज ए लाइब्रेरियन व्हाट विल यू हैव टू डू? आपको क्या करना होता है? अगर आपको लाइब्रेरी बनाना है एक बड़ी लाइब्रेरी, तो यू विल हैव टू फाइंड कि भाई क्या कौन से सब्जेक्ट्स पे क्या क्या बुक्स पब्लिश हुई हैं और कौन सी बुक्स अवेलेबल हैं, मैं कहां से उनको सोर्स कर सकता हूं, हाउ आई कैन बाय, हु आर द पब्लिशर्स, हु आर द ऑथर्स, व्हाट आर द टाइटल्स ऑफ द बुक्स. आपको ये सब इंफॉर्मेशन गैदर करना होता है. And then you will have to actually go and buy those books, a copy of that book, and keep in your library. ये प्रोसेस, ठीक है? Only then आप ये करने के बाद ही जब एक यूजर आएगा आपकी लाइब्रेरी में, then you will be able to easily pull that book and give. ठीक है? ऐसा नहीं होता है कि आप बैठ गए लाइब्रेरी खोल के, आपकी लाइब्रेरी सारी खाली है, कुछ भी नहीं है. आप बैठ गए, अब यूजर आया और एक बुक के बारे में पूछा, आप जब उठे और गए दुकान पे जाके खरीद के लाके दिए. ऐसा तो नहीं होता है. So that will take time. Right? If you're doing that live, मतलब अच्छा आपको ये बुक चाहिए, वेट, आप गए 2 दिन के बाद वापस आए बुक ढूंढ के खरीद के, ठीक है? तो that will take time. लेकिन अगर आप पहले से सोर्स करके रखें एक कॉपी, then it is easy for you. और उसके ऊपर से आप क्या करते हैं? After you source it, आपके पास सारी बुक्स आ गए. Then what you do? You create a software और सॉफ्टवेयर में आप क्या करते हैं? उसको लिस्ट कर देते हैं कैटेगरी वाइज, ऑथर नेम वाइज, ठीक है, सब्जेक्ट वाइज, एटसेट्रा एटसेट्रा, पब्लिशर वाइज. ये सारी क्या करते हैं? उस तरह से अरेंज कर देते हैं डेटा. तो whenever I come, a user comes and asks for you, I mean you for a book, आपको सिर्फ इतना ही होता है कि आप टाइप करें वो बुक का टाइटल एंड इंफॉर्मेशन लुकअप कि कौन से कबर्ड में कहां पे रखी हुई है, उसका नंबर क्या है. ठीक है, यू गो वॉक, पुल द बुक, 2 मिनट में आपका काम हो गया. इसी तरह से एग्जैक्टली इन द सेम मैनर गूगल ऑल्सो व्हाट इट डज इज दिस प्रोसेस ऑफ डिस्कवरी. जो लाइब्रेरी का प्रोसेस होता है कि भाई सब डिस्कवर करें कौन सी बुक्स है, क्या क्या है, देन उसको सोर्स करें. ये प्रोसेस को टेक्निकल टर्म्स में कहते हैं क्रॉलिंग. गूगल भी यही करता है. ठीक है, तो गूगल हमेशा इंटरनेट पे घूमते रहता है. गूगल का एक सॉफ्टवेयर व्हिच इज नोन एज गूगल बॉट. ठीक है, गूगल बॉट, GOOGLEBOT, विदाउट एनी स्पेस, दिस इज वन वर्ड.
ठीक है। गूगल बॉट इंटरनेट पे हमेशा घूमते रहता है। अब हमेशा क्यों घूमता है? इसलिए क्योंकि इंटरनेट बहुत डायनामिक है। हर मिनट कई पेजेस, नए नए पेजेस इंटरनेट पे डाले जा रहे हैं। एज वी स्पीक देयर आर थाउजेंड्स ऑफ न्यू पेजेस कमिंग अप। तो वो थाउजेंड्स ऑफ न्यू पेजेस को डिस्कवर करना होता है गूगल को, और थाउजेंड्स ऑफ पेजेस ऐसे भी हैं जो डेड हो चुके हैं, ठीक है। तो गूगल वो डेड पेजेस आपको नहीं बताएगा, क्योंकि अगर वो रिजल्ट्स में दिखेंगे पेजेस, आप क्लिक करेंगे तो आपको कुछ नहीं दिखेगा, 404 नॉट फाउंड एरर आएगा, ठीक है। इट्स अ बैड यूजर एक्सपीरियंस। तो गूगल को ये भी देखना होता है कि कौन से पेजेस डेड हो गए, ताकि मैं वो अपनी लाइब्रेरी में से निकाल दूं, ठीक है। इसलिए गूगल इज लाइक ऑलवेज स्क्रॉलिंग, इवन एज वी स्पीक वो गूगल बॉट अपने काम पे लगा हुआ है, ठीक है। इट इज ऑलवेज डिस्कवरिंग। तो ये डिस्कवर करके, जैसा कि आपने सारे सोर्स कर लिए बुक लाइब्रेरी में, और उसके बाद सॉफ्टवेयर बना के अरेंज कर लिए, दिस इज द सेम प्रोसेस दैट हैपेंस इन द बैकग्राउंड, राइट। गूगल बेसिकली डिस्कवर्स ऑल द इंफॉर्मेशन, वेब पेजेस ऑन द इंटरनेट, उसको इंडेक्स करता है, एक इंडेक्स बनाता है उसका, और स्टोर करते जाता है। नाउ इट बिकम्स इजी, जस्ट लाइक अ लाइब्रेरी, ठीक है। सब आपके पास रेडी है, कोई यूजर आया, बुक पूछा, आप सीधा निकाल दी, क्योंकि आपको मालूम है वो कहां पे है, ठीक है। उसी तरह से गूगल के पास भी सिस्टम होता है, तो इसी तरह से ये इतना फास्ट होता है। कमिंग टू इंस्टेंट सर्च, इंस्टेंट सर्च इज नथिंग but basically Google is trying to predict what you're going to search for, ठीक है। Now this is based on a lot of searches that happen. Google में there are billions of searches happen, ठीक है। तो Google ये देखता है कि when people type Y, say for example in Google, जब लोग Y से उनकी सर्च शुरू करते हैं, तो 99% of times they are ending up typing Yahoo. वो लोग 99% of times they are writing Yahoo, ठीक है। 1% टाइम्स अलग अलग चीजें लिख रहे हैं, लेकिन 99% टाइम्स क्या कर रहे हैं वो लोग? याहू लिख रहे हैं। तो गूगल ये देखता है, ठीक है। देख के व्हेन यू टाइप वाई इट विल से याहू, राइट, क्योंकि 99% चांस है कि आप याहू टाइप कर रहे हैं, 1% नहीं है, ठीक है। तो इट विल हेल्प इन दिस थिंग। तो वो सिर्फ आपको सजेस्ट ही नहीं करते हैं, उसके साथ आपको रिजल्ट भी दिखा देता है वहीं पे। तो आपका वो बाकी लेटर्स टाइप करने का टाइम सेव हो गया, ठीक है। एनी अदर क्वेश्चंस? Right. Is there any possibility so that we can prevent hacking? Yes. Okay, good question again. So Wikipedia जैसे आप लोगों को पता होगा कि कोई भी जाके उसको एडिट कर सकता है, ठीक है। और कई ऐसे इंस्टेंसेस हुए हैं जहां पे लोगों ने मिस इन्फॉर्मेशन डाल दिया विकिपीडिया पे। कई बार ऐसे हुए, न्यूज़ में कई बार आया है, ठीक है। सिर्फ एक आर्टिकल, दो आर्टिकल नहीं, कई आर्टिकल्स में हो गया। तो इट्स एन ओपन सिस्टम, इट्स वल्नरेबल ऑफ कोर्स, ठीक है। तो गूगल इज kind of builds its own intelligence around these systems. उसको मालूम है कि गूगल vulnerable है, तो उसके लिए भी वो कुछ systems ऐसे डेवलप करता है, ठीक है, ताकि वो जान जाए कि आर्टिकल मतलब सही है या गलत है, ठीक है। तो उसके पास वो भी systems हैं। Of course, Google search is not perfect, ठीक है, क्योंकि ये hackers और ये सब criminal minded people, cyber criminals as you call them, ठीक है, ये लोग क्या करते हैं, just like criminals in the real world, अपने tactics को नए नए मतलब स्ट्रेटजीज बनाते रहते हैं, ठीक है। नए नए दे कम आउट विद डिफरेंट प्लान्स, ठीक है। तो उसी तरह से दिस हैपेंस ऑन द इंटरनेट एज वेल, दे कम अप विद यूनिक टेक्निक्स, अलग अलग स्ट्रेटजीज। तो गूगल विल ऑलवेज हैव टू कीप एन आई ओपन, ठीक है। जैसा ही वो डिटेक्ट करता है, इट अपडेट्स इट्स एल्गोरिथम्स, इट्स सिस्टम्स। अरे भाई ये नई टेक्निक, वी नेवर थॉट अबाउट दिस। नॉट जस्ट दैट, गूगल आल्सो ट्राइज टू प्रेडिक्ट, जस्ट लाइक हाउ पुलिस वर्क्स, ठीक है। क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए भाई अरे क्रिमिनल, अच्छा इन्होंने ये टेक्निक इस बार यूज की है, अगले बार क्या कर सकते हैं, उस तरह से गूगल भी सोचता है। नॉट दैट गूगल इज पोलिसिंग द वेब, राइट, बट अपने यूजर्स को सेफ किस तरह से रख सकते हैं वो, बस इट इज वर्किंग अराउंड दोस लाइंस। एनी अदर क्वेश्चंस? हिट्स से भी अफेक्टेड होता है ना, वेबसाइट के कितने हिट्स हैं उससे भी होता है ना। कितने हिट्स हैं? हाँ, जैसे मेरे वेबसाइट के 25,000 हिट्स हैं, तो ऊपर आएगा वो। तो बेसिकली दैट इंफॉर्मेशन इज नॉट अवेलेबल टू गूगल। तो गूगल कैसे जानेगा कि आपके पास कितने हिट्स हुए हैं? गूगल इज जस्ट वन सोर्स ऑफ ट्रैफिक, है कि नहीं? गूगल की तरह बहुत सारी सर्च इंजिन्स हैं, बहुत सारी डायरेक्टरीज हैं ऑनलाइन, या फिर आप कुछ इवेंट करते हैं, आपका बिजनेस कार्ड पे आपका यूआरएल होता है वेबसाइट का, तो लोग अलग अलग तरह सोर्सेज से आपकी वेबसाइट पे पहुंच सकते हैं। तो ये गूगल को पता चल ही नहीं सकता कि मैं कितनी ट्रैफिक, तो दैट इज लाइक we cannot use that basically, right? That's it. So, you know, like you said, आपका जो crawling Google bot, वैसा, you know, we get lot of spam emails.
So उसका मतलब if I type suresh@gmail.com and I expose that email to somebody else, so somebody, the spamster is also crawling, web crawler, and collecting the email ID and sending me email for Baigara to Nigeria, anything. Right. So some people क्या करते हैं उसको, जब मेरा email मैं expose करता हूँ suresh@at.dot.com. So just wanted to ask you, is it very useful if I do that when I expose my तो आप बोल रहे हैं कि मतलब सुरेश at डॉट @ लिखने के बजाय आप लिख रहे हैं AT. because जैसा आप बोल रहे हैं Google bot घूमते रहते हैं, ऐसा scamsters are True. also collecting this True. information and then throwing me back emails True. or True. unwanted things from my True. computer. True, absolutely. तो गुड क्वेश्चन. तो सवाल है कि बेसिकली जब आप जिस तरह से गूगल बॉट है इंटरनेट पे घूम रहा है और इट इज ट्राइंग टू डिस्कवर ऑल द क्या क्या इंफॉर्मेशन है इंटरनेट पे, उसी तरह से ये स्पैमर लोग जो होते हैं, हैकर्स जो होते हैं, दे आल्सो क्रिएट देयर ओन बॉट्स. अ बॉट इज नथिंग बट अ सॉफ्टवेयर. ठीक है, उनके बॉट्स भी इंटरनेट पे घूमते रहते हैं. ठीक है, एंड दे ट्राई टू डिस्कवर डिफरेंट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन. गूगल बेसिकली क्या डिस्कवर कर रहा है, क्या यूजफुल इंफॉर्मेशन ऑनलाइन है. ये बॉट्स क्या ढूंढते हैं, किसका क्रेडिट कार्ड नंबर कहां पे है, ठीक है, और किसके पर्सनल पिक्चर्स कहां पे हैं, किसके ईमेल एड्रेसेस कहां पे हैं. ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा होता है कि सारे लोगों के ईमेल एड्रेस कलेक्ट कर लो, उनको स्पैम भेजना शुरू कर दो. सारे लोगों के फोन नंबर्स कलेक्ट कर लो, उनको एसएमएस भेजना, एसएमएस स्पैम करना शुरू कर दो. ठीक है, दिस हैपेंस. तो सवाल है कि अगर आप ईमेल जो फॉर्मेट में होता है उसको कुछ ट्वीक करके अगर लिखें तो विल दैट हेल्प. तो जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे कि दी स्पैमर्स दे आर आल्सो वेरी स्मार्ट. ठीक है, उनको पता है कि भाई सिर्फ @ सिंबल नहीं, लोग AT भी लिखते हैं. ठीक है, डॉट की जगह DOT लिखते हैं, तो वो अपने सॉफ्टवेयर में इनबिल्ड करते हैं वो लोग. ठीक है, तो दे आर वेरी स्मार्ट. one technique that is like kind of a little difficult, it is not impossible, little difficult to safeguard your email address is आप क्या कर सकते हैं, उसको एक इमेज बना दे सकते हैं. एक अगर आप इमेज फाइल बना दें तो अगर सिंपल टेक्स्ट में लिखा हुआ है वो, ठीक है, अगर डॉट आप डॉट को DOT भी लिख रहे हैं, @ को AT@ भी अगर लिख रहे हैं, तो इट इज स्टिल easier to find that. लेकिन if you convert that into an image file, JPEG और GIF, PNG, ये जो फॉर्मेट्स होते हैं, तो थोड़ा सा और मुश्किल हो जाता है. ठीक है, तो but it is not impossible again. Any other questions? So is it clear what web spam is and why it happens? Right? तो ये सब टेक्निक्स हो सकते हैं. So that is one motive of the hacker, web spam. Yes. Just one question. Sure, जैसे sure. आपने बताया था phishing. Phishing normally happens कि आपको लिंक भेजा जाता है and you have to press the link and then it will take you to a wrong website. So Right. generally for a technical person, वो right click मार के inspect element देखते हैं, taking you to the right address where what you want. But what will the normal person do? How do you know that you are not taking to phishing site? Right. So it's a difficult thing, right? For a normal user, it's difficult. Sometimes what happens is, so people are not aware of like looking at the view source and these are kind of a little advanced for like very generic or general public, right? एक चीज ये होता है जिसे हमने बात किया, स्टेटस बार. अच्छा. ठीक है, तो स्टेटस, how many of you know status bar now? ठीक है, if you have never seen a status bar, आप कैसे देख सकते हैं when you open Chrome say for example, browser. ठीक है, आप अपना माउस का कर्सर किसी लिंक के ऊपर लेके जाते हो. ठीक है, तो वहां आपके ब्राउजर के नीचे में वो डेस्टिनेशन लिंक दिखाई देगा. ठीक है, where it is leading. Sir जी, आपका Chrome settings में is there some? I think I have seen something called avoid phishing sites. Is it there in the Chrome settings? I am not really sure, but ऐसा कुछ है? हाँ. डिफॉल्ट से है? डिफॉल्ट से हाँ, तो basically there, I mean we wouldn't have something like that, I'm guessing, क्योंकि avoid phishing sites is Avoid नहीं कर सकते, at least you know. Right. filter. It's an automatic thing. right, absolutely. So, if I am Vivek, I run product quality operations for India, based in Joshua, Florida. So, if okay, can you hear me? Yeah. Yes. being recorded. So if we know that it's a phishing site already, we show you a red colored page
that this is a phishing site. So that, or at times for malware also. If we know it's a malware or a phishing site or a dangerous site, we will show you a red warning page, which which gives you the option to go to that page or not go to that page. All right. So that is there. There is also, if you come across a phishing page, there is a report phishing option also in Chrome. That is how your database, I think, your bucket is big. Correct. So the report phishing, we are actually giving service to other browsers also. Some other browsers also, when they report phishing, for example, Firefox, it will show you a similar warning. That warning is being generated from our source. So all this goes into a common bucket. It goes into a common bucket, which sometimes we share with, depending on browser to browser, we share it. So, अगर phishing site है, हमें पता है, we will give you a warning. So basically, it doesn't make sense कि वो option दें. There is, I mean, generally public, I mean, why will somebody uncheck कि भाई नहीं phishing for sites भी, I mean, allow them, right? So it doesn't make sense to give that option, so it is automated. हाँ, इसके लिए मुझे लगा अगर default में है तो अच्छा है. हाँ, If absolutely. it's not that somebody has to go and do it, then they have to be doing it. Right. So we will also see in the coming slides कि जैसा विवेक ने बताया कि हम लोग एक रेड कलर का वो बताते हैं, ठीक है, एक क्रोम में अलर्ट, ठीक है, we will see that snapshot as well in the coming slides. So phishing, right? So everybody knows what a phishing is now, is it or no? How many of you don't know? Okay, still don't know. ठीक है. तो phishing is basically जैसा हम बता रहे थे कि मतलब एक तरह का धोखा है, ठीक है? तो आपको ये बताया जाता है कि ये वेबसाइट जो है वो जेन्युइन वेबसाइट है. जैसे कि हमने एग्जांपल लिया ICICIbank.com का, ठीक है? ICICIbank.com की जगह कोई बंदा हो सकता है, हैकर या स्पैमर जो भी है, ठीक है? What he will do कि वो एक डोमेन नेम रजिस्टर करता है जहां पे ICICI बैंक में BANK ये स्पेलिंग है बैंक की, ठीक है? उसकी जगह N की जगह वो M लिख देता है, ठीक है? तो जनरली आप जब देखते हैं तो यू विल जस्ट ग्लांस ओवर इट, ICICI बैंक, ठीक है? ठीक है? यू विल नॉट सी द डिफरेंस बिटवीन M एंड N. वहां पे आप धोखा खा जाते हैं, ठीक है? तो व्हाट हैपेंस व्हेन यू लैंड अप ऑन दैट वेबसाइट, वो पेज बिल्कुल ICICIbank.com के पेज के जैसा ही लगता है. एंड देन यू इनपुट योर यूजर आईडी, पासवर्ड, व्हाटएवर, और वो सीधा जाता है स्पैमर के पास, ठीक है? सो दिस इज बेसिकली this technique is called phishing, ठीक है? It is not HTTPS. That website page might not be HTTPS. Yes, it might not be HTTP. Usually it is not, yeah, हो सकता है rare cases में, लेकिन yes, usually when it is HTTPS it is verified and stuff. So usually it is not. I think that slide is already shown, right? So HTTP and HTTPS कैसा आप देखते हैं, कहाँ पे दिखता है वो? Okay, in the next coming slide we will discuss that as well in the next session. Yeah. मुझे लाइव एक्सपीरियंस है इस चीज का. अच्छा. मेरा HDFC बैंक से 1 लाख रुपए उठाया. Oh my God. और 50,000 मदुरई को गया, 50 चेन्नई को गया. Wow, you see, यही भी एग्जांपल है. वो आपको गूगल सर्च ने बताया रहेगा आपका पैसा कहाँ गया. अकाउंट में गया. तो कैसा हुआ, क्या अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे? मेरा आरोप है कि नहीं, मैं आवाज बढ़ा दूंगा. ओके. हाँ. मेरा एक्सपीरियंस ये है कि मेरे अकाउंट में 2-3 महीने तक पैसा नहीं. यहाँ अक्षय पहले 2,000 रुपए, 5,000 का कुछ. ठीक. मुझे एक जगह से 1.25 लाख रुपए का पेमेंट आ गया. तो वो डेट अकाउंट था, समझो 5-6 महीने पैसा नहीं था. जिस दिन मैंने चेक डाल दिया, पास हो गया, और पास होने के नेक्स्ट डे वो पैसा निकाला गया. ओके. तो ये जो फिशिंग करते हैं ना, जो अपने पे, तो वो और बैंक वाले लोग भी मिल जाते हैं कभी कभी, क्योंकि डेट अकाउंट कैसे पता चलेगा उनको कि अभी डाला है, 4-6 महीने से नहीं किया है ऑपरेशन. तो जिस अकाउंट पे सीनियर सिटीजन्स लोग ऑपरेशन लेट करते हैं ना, उनके पुणे में बहुत सारे केसेस होते हैं इन लोगों के, इनके पैसे उड़ाए जाते हैं. यदि हम लोग अपना अकाउंट रेड रखें, कम बैलेंस वाला, और एक ही दिन में ज्यादा पैसा आ जाए, 1 लाख रुपया, 2 लाख रुपया, तो नेक्स्ट मूवमेंट ये जो भी अपने अकाउंट में आ जाएगा, ये निकाल लेते हैं दूसरा. उसके पहले डेट अकाउंट में जब ये चेक जाता है तो उनको इंफॉर्मेशन जाती है. मेरा ये रूरल टाइप का बात होगा, लेकिन मैं एक्सपीरियंस किया वो बोल रहा हूं. तो उनको इंफॉर्मेशन ये मिलती कि इसमें पैसा आ गया, तो फिर वो जब भी कुछ करने का होगा ना, तो फिशिंग का पेज आ गया. ओके. HDFC बैंक एकदम वैसे ही आया. ओके. मैंने रेगुलर
पासवर्ड डाला तो वो गया था, और आधे घंटे में मेरे अकाउंट से 2 अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो गए, क्योंकि मेरा एसएमएस सिस्टम था। 4 साल पहले का चीज बोल रहा हूँ मैं। हाँ। तो मुझे एसएमएस आके 50,000 रुपया मदुरई के अकाउंट में गया, एक फादर के, और 50,000 रुपया चेन्नई के अकाउंट में गया। तो इंडियन एक्सप्रेस फ्रंट पेज में न्यूज भी था काफी बड़ा आपको। ओके। तो ये हो गया था फिशिंग मेरे से, इसलिए मैंने आपको एक लाइव स्टोरी। ओके, फिर पैसा आपको वापस मिला? 3 महीने के बाद मुझे। अच्छा। HDFC बैंक ने मुझे दिया, उन लोगों ने दिया पता नहीं। ओके। बैंक ने। तो एक तो फिशिंग से ऐसे हो सकता है, दूसरा क्या होता है कि जो आपका यूजर नेम और पासवर्ड है, ईमेल है या पासवर्ड है, वो कई बार कॉमन रखते हो आप लोग दूसरी जगहों पे। तो बैंक सिक्योर होगा, ईमेल प्रोवाइडर सिक्योर होगा, पर कई जो दूसरी साइट्स होती हैं वो सिक्योर नहीं होती, और वहां से उनको ये यूजर नेम पासवर्ड्स मिलते हैं, और वो फिर अलग अलग जगह पे ट्राई करना शुरू करते हैं। इसलिए अपना जो प्राइमरी ईमेल प्रोवाइडर, बैंक और ऑफिस का पासवर्ड हमेशा यूनिक होना चाहिए, कहीं दूसरी जगह पे यूज मत करो उसको। ये 3 पासवर्ड हमेशा यूनिक रखने चाहिए। तो जब ये बात आई तो और एक टेक्निक भी होती है which is known as ये चीजें मोबाइल पे कॉल आके भी होती है, मतलब जैसे मैंने आपको कॉल करी, यही अभी बस यही बता रहा था मैं, इसको कहते हैं सोशल इंजीनियरिंग। ठीक है, कितने लोगों को पता है सोशल इंजीनियरिंग? ओके, 2 या 4। ठीक है, मायावती वाला। माया सोशल पॉलिटिकल कमेंट है। ओके, पता नहीं, नॉट अवेयर। ठीक है, तो सोशल इंजीनियरिंग, व्हाट इज सोशल इंजीनियरिंग? बेसिकली यू मे रिसीव अ कॉल। ठीक है, आपको कॉल आएगा से फॉर एग्जांपल गूगल की तरफ से। ठीक है, वो एग्जीक्यूटिव बात करेगा गूगल, आई एम टॉकिंग फ्रॉम गूगल। ठीक है, हम लोग आपका जीमेल अकाउंट जो है वो अपग्रेड कर रहे हैं, उसका जितना भी कोटा है एमबी साइज में व्हाटएवर। ठीक है, एंड वी नीड योर पासवर्ड, ऐसा बताएंगे वो लोग। प्लीज एसएमएस योर पासवर्ड टू दिस नंबर। आपको एसएमएस आएगा या फिर कॉल आएगा, क्या है आपका पासवर्ड, ठीक है, और आपकी सिक्योरिटी क्वेश्चन क्या है, उसका आंसर क्या है। ठीक है, ऑल दीज थिंग्स। सो दिस इज नोन एज सोशल इंजीनियरिंग। गेनिंग कॉन्फिडेंस, आपका वो कॉन्फिडेंस ले लेंगे कि हम जेन्युइन आदमी हैं, जेन्युइन कंपनी से, देन वो सब आपसे उगलवा लेंगे। ठीक है, सो यू हैव टू बी अवेयर ऑफ दिस इज वेल। Google never ever asks for passwords through SMS or whatever, right? It never asks for your passwords basically. आपकी ईमेल से या फिर फोन से या फिर SMS से, it never asks for your password. So if anybody is asking password, अगर आपकी किसी बंदे ने आपसे अगर Google का नाम लेके अगर password पूछा है तो समझ जाइए कि वो fraud है। हम आपको फोन ठीक है, okay, definitely, yes. मैं जैसे मेरा SBI में अकाउंट है, मुझे उन पे सारी इंफॉर्मेशन मैंने SBI को दे दी, अपना मोबाइल नंबर आता है, ICICI से आता है, मोबाइल नंबर आता है, ईमेल भी आता है। किस जगह से, मतलब कैसे वो करते हैं, क्या होता है? तो हम लोग अलग अलग जगह जाते हैं, वहाँ पे ड्रॉ ऑफ लॉट्स होता है, लकी ड्रॉ वगैरह, वहाँ पे हर जगह पे वो लोग फ़ोन नंबर मांगते हैं। एक तो वहाँ से जाता है उनके पास फ़ोन नंबर। तो जितने भी लकी ड्रॉज मॉल्स वगैरह में होते हैं, कहीं पे भी, जहाँ पे भी आप अपना नंबर देते हो, वहाँ से उन लोगों के पास ये नंबर जाते हैं। दूसरा, अपना घर पे कुरियर वाले आते हैं ना, डिलीवर करने के बाद, उसके बाद आपको पूछते हैं प्रूफ ऑफ डिलीवरी, आपका मोबाइल नंबर क्या है, वहाँ से वो एक और है। यानी कंपनीज वाले भी दे रहे हैं ना आजकल, ये आइडिया वाले भी दे रहे हैं कंपनी वाले। अंदर से भी होता है। हाँ। तो उन्होंने कहा मैं SBI से बोल रहा हूँ, क्या मैं आपका ATM नंबर जान सकता हूँ, ये इंक्वायरी चलती है। फिर उन्होंने बताया, फिर उनके उससे 5,000 रुपये उसी में वो कोई बैंक, कोई सर्विस प्रोवाइडर आपसे पासवर्ड या ATM पिन नहीं मांगेगा। अगर वो मांगेगा तो वो धोखा करने की कोशिश करेगा। कोई पॉलिसी अलाउ नहीं करती है ये। और एक तो वहाँ से जाते हैं कोरियर वाले, कई और सोर्सेज भी हैं। कई बार इंश्योरेंस वाले इंफॉर्मेशन बेचते हैं और क्रॉस सेलिंग, तो वहाँ से जाते हैं, वहाँ से फ़ोन नंबर्स और ईमेल आईडीज वगैरह बिकते हैं। सबसे ज़्यादा बड़ा है ये ड्रॉ ऑफ लॉट्स, वो सोर्स सबसे बड़ा। सर वैल्यू एडेड सर्विसेज जो कंपनी प्रोवाइड करती है ना, वो सबसे ज्यादा डेटा बेचती है। वो भी डेटा मुझे 5-6 साल का SMS का एक्सपीरियंस है, ये सबसे ज्यादा डेटा बेचती है। So be careful, जब भी आप अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन, फोन नंबर, ईमेल एड्रेस, व्हाटएवर यू आर शेयरिंग, बी केयरफुल कि किसके साथ आप शेयर कर रहे हैं। ठीक है, ऑनलाइन या ऑफलाइन। सगळे दिले बात। ठीक है, तो इज फिशिंग क्लियर?
Okay, so this was the second motive. ठीक है, अब इसके बाद और एक मोटिव होता है हैकर्स का कि मॉलवेयर फैलाएं. कि व्हाट इज मॉलवेयर? कितने लोगों को पता है मॉलवेयर क्या है? Okay, so malware, yeah, please go ahead if you want. उसका इंटेंट ये है कि स्प्रेड अ मैलिशियस कोड इनटू आपका जो लैपटॉप यंत्र मंत्र है उसका मंत्र चेंज करके मैलिशियस इंटेंट से आपको जो एक्सेस करना है आपका जो भी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यंत्र वो है मैलिशियस कोड. Absolutely. It's general word in it's called हाँ. virus. It's general word. Right. तो malware is nothing but a piece of software. ठीक है, वो एक सॉफ्टवेयर है, समझ लीजिए आप, जो आपकी मर्जी के बगैर आपके कंप्यूटर पे इंस्टॉल हो चुका है. ठीक है, तो उसके मॉलवेयर के बेसिकली 3 बिहेवियर्स हैं जो वेरी प्रोमिनेंट हैं. वो ये है कि वो अपने आप को, मतलब सॉफ्टवेयर खुद अपने आप को आपके कंप्यूटर पे, मोबाइल पे, किसी पे भी इंस्टॉल कर सकता है, कोई भी डिवाइस पे आपके खुद वो इंस्टॉल हो जाएगा ऑटोमेटिकली विदाउट यू इवन नोइंग, आपको पता भी नहीं चलेगा. ठीक है. दूसरा है कि वंस इंस्टॉल्ड इट कैन डू एनीथिंग ऑन योर कंप्यूटर, राइट? जैसे कि फॉर एग्जांपल आपकी ईमेल आईडी से किसी और को ईमेल भेज दें. ठीक है. और एक होता है कि इट कैन रिमेन इनविजिबल, आपको दिखाई नहीं देगा जब तक आप कोई एंटी वायरस सॉफ्टवेयर नहीं डालेंगे, एंटी मॉलवेयर सॉफ्टवेयर रन नहीं करेंगे. ठीक है, जब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके सिस्टम पे कोई बैठा हुआ है. ठीक है, लुकिंग एट एवरीथिंग यू आर डूइंग and doing things that you don't want your computer to do. ठीक है, ये सब मैंने सुना सर आपका कैमरा, ये जो कैमरा है, हाँ ना, माइक्रोफोन है, वो भी चालू हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल. तो malware can do anything with your computer. It's a piece of software, right? तो सॉफ्टवेयर आपके हार्डवेयर के साथ खेल सकता है या फिर आपके कंप्यूटर पे, मोबाइल पे किसी और सॉफ्टवेयर के साथ भी खेल सकता है. ठीक है. तो नाउ व्हाई विल दिस हैपन? ठीक है, कुछ सिनेरियोस जहाँ पे मॉलवेयर यूज हो सकता है. हमने एक एग्जांपल लिया. यस, क्वेश्चन. मुझे ऐसा एक्सपीरियंस है, मेरी आईडी से बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स को मेल जा रहे थे और वो पूछ रहे थे क्या क्या भेजता रहता है यार. तो बाद में फिर मैंने उस मेल आईडी को ही खत्म किया क्योंकि मुझे नहीं पता था अब मैं करूँ क्या. और आई वाज फीलिंग लाइक कि यार मैंने तो कुछ नहीं किया, पता नहीं कैसे चला गया. तो आई थॉट एब्सोल्युटली शायद ऐसा बहुत बार होता है और मैं खुद कई लोगों को जानता हूं जिसके साथ एग्जैक्टली ये हुआ है. ठीक है, उनके कंप्यूटर से मेल भेजे जाते हैं कुछ की. ठीक है, जैसे कि हमने देखा एग्जांपल वेब स्पैम का. वेब पेज के ऊपर उन्होंने लिंक्स डाल दिए थे 2246. ठीक है, उसी तरह से ये भी हो सकता है कि आपको स्पैम मेल आए. ठीक है, तो मतलब ईमेल कैसे काम करता है? अगर अननोन पर्सन के पास से अगर ईमेल एड्रेस से ईमेल आए तो इट मे एंड अप इन द स्पैम फोल्डर, जो स्पैम फोल्डर होता है ईमेल के अंदर. ठीक है, लेकिन आपके कॉन्टैक्ट्स में जो ईमेल एड्रेस एडेड है, जिससे आप यूजुअली ईमेल रिसीव करते हो और जिसको आप ईमेल लिखते भी हो, उनके पास से कोई अगर ईमेल आए तो द सिस्टम, ईमेल सिस्टम, वेदर इट बी जीमेल, याहू मेल और व्हाटएवर, राइट, इट विल थिंक इट्स एन ओरिजिनल मैसेज. ठीक है, तो ये मोटिव होता है. व्हाट दीस पीपल डू कि आपके सिस्टम पे मॉलवेयर इंस्टॉल कर देंगे. Then they will use your email client to send emails to people in your contact list. आपके contact list में आप जिससे conversation exchange करते हैं आपकी email के थ्रू, उन्हीं लोगों को ये email जाएगा. ठीक है, कल Valentine's Day है, buy flowers, ये मैसेज जा सकता है. ठीक है, और लोग समझेंगे कि अरे ये मेरे फ्रेंड ने ये अच्छी वेबसाइट शेयर की है, मैं यहाँ से खरीदूंगा. आप जैसे ही वो वेबसाइट खोलेंगे आपके सिस्टम पे मॉलवेयर आएगा. ठीक है, फिर आपके कॉन्टैक्ट्स को सबको मिल जाएगा बाय फ्लावर्स. ठीक है, जैसे जैसे वो लोग खोलेंगे उनके सिस्टम पे मॉलवेयर इंस्टॉल होगा. ठीक है, इस तरह से ये बढ़ते जाएगा. तो इट विल स्प्रेड वेरी रैपिडली. ठीक है, सो दीज आर द 3 बिहेवियर्स दैट मॉलवेयर बेसिकली हैज. सो वी हैव टू बी रियली अवेयर ऑफ दिस थिंग. यस. Can this malware also get inside Mac laptops? Especially Mac is virus free and इट इज नॉट वायरस फ्री, राइट. तो बिल्कुल होता है, मैक पे भी होता है. ठीक है, आप बहुत बार अगर इफ यू आर यूजिंग मैक यू विल सी दिस. ठीक है, बिकॉज़ आई यूज मैक, आई हैव सीन दिस. आप कई बार देखते हैं व्हेन यू आर विजिटिंग अ वेबसाइट यू विल सी एन ऐड मैक
cleaner or Mac keeper, ठीक है, clean your Mac, save hard disk space on Mac, ठीक है, आज वो क्लिक करेंगे, it will pretend as it is an antivirus software, anti-malware or a cleanup software, but actually it is a malware, ठीक है, आप जब इंस्टॉल करोगे तो आपको ऊपर तो दिखाएगा कि I'm cleaning disk space and everything, पीछे से ये सब काम शुरू हो जाएंगे. So this is the malware. तो what can it do? आप क्या क्या कर सकता है ये malware once आपके सिस्टम पे आ जाए? It can steal your passwords, right? Malware जब आपके सिस्टम पे है तो it can actually track what you are typing on your laptop, ठीक है? तो आप जब भी आप for example phishing से तो basically आपको किसी और पेज पे किसी और वेबसाइट पे ले जाया गया था, right? कि वो फेक वेबसाइट थी, लेकिन malware से ये हो सकता है कि आपके एक बार आपके सिस्टम में malware आ जाए, then you open ICICIbank.com, you type it correctly, every letter, ठीक है, आपको पता है एक बार फिशिंग का एक्सपीरियंस हो गया, ठीक है, अब आप ये सोचिए कि अब मैं ये झांसे में नहीं आऊंगा, ठीक है, then you type every letter very clearly ICICIbank.com, and then you see HTTPS भी आ गया, everything secure, everything safe, you type in your user ID, you type in your password, you enter, you make a transaction, get out, कल फिर आपको SMS आता है कि फिर इतने पैसे ट्रांसफर हो गए आपके अकाउंट से, तो ये कैसे हुआ, ठीक है, because there was a malware on your system, ये सब ट्रैक कर रहा था आपका, कौन सी वेबसाइट पे आप गए, कौन सी वेबसाइट पे कौन सा यूजर आईडी आपने टाइप किया, कौन सा पासवर्ड आपने टाइप किया, ठीक है, आपका ये क्या था, वो क्या था, ये कोड क्या है, ट्रांजैक्शन पासवर्ड क्या है, थिंग्स लाइक दैट, इट विल कीप ट्रैक ऑफ एवरीथिंग, ठीक है, तो दिस में आल्सो हैपन, एंड malware इज स्पेशली डेंजरस बिकॉज़ इट कैन स्प्रेड इटसेल्फ, अपने आप को फैला सकता है, जैसे कि हमने देखा है, ठीक है, आपकी ईमेल से किसी और को ईमेल कर देगा, जैसे ही वो लोग वेबसाइट खोलेंगे उनके पास भी आ जाएगा, दिस कैन स्प्रेड वेरी फास्ट, ठीक है, तो हाँ, यस, अगर आपके सिस्टम में malware आ गए and once your account or something has been already hacked, can it happen again and how can you prevent it from happening again? good question. It can happen again, it can happen 100 times, right? If you're not careful, it can repeat itself, of course, why not, ठीक है, so malwares don't have any ethics, कुछ भी नहीं है उनके पास, ठीक है, वो चोर है, डाकू है, ठीक है, आपको 10 बार लूटेगा, 100 बार लूटेगा, ठीक है, तो it is nothing कि ऐसा नहीं होगा दोबारा, ठीक है, तो what you will have to do is there are multiple things that you can do. Some of the things probably will be covered in the other sessions and stuff. So I will talk about like what Google does, how it keeps you safe on Google search. उसके अलावा what I can say is basically always keep your antivirus and anti-malware softwares updated, ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि subscribe for a 15-month package, वो लैपटॉप के साथ फ्री आता है, ठीक है, 15-month Norton antivirus free, जैसे ही फ्री खत्म होता है, मतलब when it expires you never renew it, अरे कौन डालेगा 2000 रुपए, ठीक है, this is the mistake you do, ठीक है, वहां पे अपॉर्चुनिटी मिल जाती है malware को, spamware को, whatever, right? तो keep your, and not just the antivirus software, malware software, but also your operating system. अगर आपके पास Windows हैं, ठीक है, Windows from time to time keep releasing वो security के जो वो होते हैं, मतलब updates होते हैं या फिर normal updates होते हैं, ठीक है, वो आते रहते हैं, ठीक है, so you have to maintain your computer. सर उसके लिए लाइसेंस वाला सॉफ्टवेयर चाहिए. Of course, right? तो अगर pirated है तो फिर आप भी वो सब डाकुओं में कि आप भी एक डाकू हैं. तो yeah. बट सर आपने जो बताया क्या बोलते हैं एंटीवायरस को आप अपडेट करके रखिए प्लीज, वो सिर्फ उससे नहीं चलेगा, हर रोज आपको उसका Right, absolutely, very good point. ठीक है, तो आप ये भी देखें कि कहीं आपका वो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर डिसेबल तो नहीं है, और आप स्केड्यूल बना के भी रख सकते हैं, अगर आप डेली जाके अगर आप खुद आप स्कैन नहीं कर रहे हैं अपना कंप्यूटर, तो आप स्केड्यूल बना दिया एवरी फ्राइडे 8 PM स्कैन माय कंप्यूटर ऑटोमेटिकली, ठीक है, तो वो खुद कर लेगा, अगर कुछ है प्रॉब्लम अलर्ट कर देगा, ठीक है, सो दिस इज आल्सो वेरी गुड पॉइंट, एक्चुअली सिर्फ सॉफ्टवेयर डालना काफी नहीं है, बाज सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं malware and spamware, they will actually install themselves on your computer and disable your antivirus, ऐसा भी होता है, ठीक है, उसको डिसेबल कर देंगे, तो इट इज इंपॉर्टेंट टू कीप अ चेक, ठीक है, आपको अपना कंप्यूटर देखते रहना है हमेशा. ओके, नाउ गोइंग ऑन टू लाइक हाउ गूगल, वी आर टॉकिंग अबाउट गूगल सर्च, राइट? तो गूगल सर्च में हाउ डज इट कीप यू सेफ फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स? वी हैव सीन 3 motives. The primary motive is basically financial,
ये लोग पैसे के पीछे हैं, किसी तरह से पैसा बनाए। 3 स्ट्रैटेजी अपनाते हैं। एक वेब स्पैम, हमने देखा कि गूगल सर्च कैसे काम करता है और वेब स्पैम कैसे इफेक्ट कर सकता है इसको, ठीक है। रिमेंबर दी फ्लावर शॉप एग्जांपल, द बैनर, ठीक है। उसके बाद में द अदर इज फिशिंग, ठीक है। अभी तो सब लोग फेमिलियर है फिशिंग से, व्हाट फिशिंग इज, राइट। तीसरी स्ट्रैटेजी है मॉलवेयर इंस्टॉल करें, ठीक है। तो अब गूगल आपको कैसे सेव करता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाई डज गूगल केयर? गूगल को क्या पड़ी है, ठीक है, कि आपको ये सब चीजों से सेव रखे? क्योंकि गूगल इज डीलिंग विद, एज वी सेड, एटलीस्ट 60 ट्रिलियन पेजेस, ठीक है। अब ये सब पेजों को आपका कंप्यूटर, ठीक है, कितना डेटा होता है आपके पास? लाइक मैक्सिमम एक 4 GB 5 GB आपके लैपटॉप पे फॉर एग्जांपल डेटा है, उसको स्कैन करने के लिए आपका एंटीवायरस सॉफ्टवेयर 1 घंटा 1.5 घंटा लगाएगा, डिपेंडिंग ऑन व्हाट टाइप्स ऑफ फाइल यू हैव एंड एवरीथिंग, राइट। अब सोचिए गूगल इज रनिंग अ स्कैन 60 ट्रिलियन पेजेस पे, कितना टाइम लगेगा, राइट? कितनी एनर्जी लगेगी, कितना पावर लगेगा, कितने रिसोर्सेज लगेंगे, ठीक है। तो व्हाई इज गूगल इन्वेस्टिंग सो मच टू कीप यूजर सेफ, ठीक है? बिकॉज ऑफ कोर्स इट इज द राइट थिंग टू डू, ठीक है, फॉर गूगल, बिकॉज देयर आर मिलियंस ऑफ पीपल डेली, रोज के कई मिलियन लोग गूगल पे आते हैं, सर्च करते हैं, ठीक है। मेनी ऑफ देम आर इनोसेंट, दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट कंप्यूटर्स, so it is Google's duty to keep it safe, right? Also Google doesn't want to, harm the, जो trust होता है, reputation होता है Google का, ठीक है, वो खराब करना नहीं चाहता है Google, ठीक है, of course, क्योंकि आपको ये लगे कि भाई आप, अरे जब भी मैं Google पे जाता हूँ मेरे सिस्टम पे malware आता है तो आप Google पे हमें छोड़ देंगे, ठीक है। So there is this also this, ठीक है। तो there are various reasons why we take it extremely seriously, users की security, right? So we have developed different systems to alert the users, not just scan the entire web pages and stuff to see कि भाई किसमें malware है, क्या है, कौन सा सही है, कौन सा गलत है, मतलब कौन hacker है, कौन spammer है, क्या malware है, ये सब scan अपनी जगह करने के अलावा users को भी Google alert करते रहता है different ways से। and ये सारी products में है Google के, जहाँ पे भी user facing, जैसे कि Gmail है या फिर कुछ भी ले लो आप, हर जगह अलर्ट्स होते हैं। गूगल सर्च में भी उसी तरह से अलर्ट्स आते हैं आपको, ठीक है। और गूगल डज दिस यूजिंग अ वैरायटी ऑफ टूल्स, जैसे कि हमने बताया कि 16 ट्रिलियन पेजेस के साथ डील करना इट्स नॉट अ मामूली बात, ठीक है। इट टेक्स अ लॉट ऑफ एनर्जी, एफर्ट, टाइम एटसेट्रा, लॉट ऑफ इंजीनियरिंग, ठीक है, बट वी कंटिन्यू टू डू दैट। So a couple of alerts that Google shows you on the internet, आप अगर Google पे जाएं और कुछ सर्च करें तो sometimes I don't know, हाथ उठाएं जितने लोगों में ये, मतलब आप जिन्होंने भी ऐसा मैसेज देखा है, it may say कि this site may be compromised, ऐसा एक मैसेज आएगा, या फिर it may say this site may harm your computer, या फिर this site may be hacked, ऐसा कुछ मैसेज आएगा। कितने लोगों ने देखा ये मैसेज? लाल सा आता है, ओके, 6-7 लोगों ने, सॉरी, रेड सा आता ना पेज, हाँ, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, ठीक है। ये तो गूगल सर्च रिजल्ट्स की पेज की बात है, ठीक है। जब आप कुछ टाइप करेंगे, google.com पे जाएंगे और कुछ टाइप करेंगे, ठीक है, then you will get the search results, right? Results में ही आपको ये दिखेगा। तो how many of you seen this? 6-7 लोगों ने देखा है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो हो सकता है कि आपने ऑब्जर्व नहीं किया हो, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम whenever you're using Google search, be alert, आप देखें, स्पेशली आप जो लिंक पे क्लिक करना चाह रहे हैं वहां पे देखें कि ऐसे कुछ मैसेज है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि लोग, जिसको पता नहीं होता है, वो लोग ये पढ़ते भी नहीं, ठीक है, समझते हैं कि फर्स्ट रिजल्ट है, रिलेवेंट है, क्लिक कर देंगे, ठीक है। व्हाट हैपेंस अगर आप क्लिक करें, अगर आप क्रोम यूज कर रहे हैं, ऑफ कोर्स आपको कुछ इस तरह से अलर्ट दिख जाएगा, अगर आप क्रोम ब्राउजर यूज कर रहे हैं या फिर फायरफॉक्स भी, ठीक है, तो आपको इस तरह का एक अलर्ट दिख जाएगा, ये बताएगा कि दिस वेबसाइट इज नॉट सेफ फॉर यू, प्लीज गो बैक, ऐसा बता देगा। लेकिन समटाइम्स इट मे नॉट हैपन इफ यू आर यूजिंग एनी अदर ब्राउजर, इट मे नॉट हैपन, ठीक है। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। अगर आपको मैसेज गूगल सर्च में देखें, दिस साइट मे बी कॉम्प्रोमाइज्ड, मे बी हैक्ड, ठीक है, व्हाटएवर, तो नेवर एवर क्लिक ऑन दैट वेबसाइट, राइट। आपके पास एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होगा, अप टू डेट होगा, ठीक है, एंटी मॉलवेयर सॉफ्टवेयर होगा, अप टू डेट होगा, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम अप टू डेट होगा, सब कुछ होगा, इवन देन डू नॉट क्लिक, इट इज वेरी रिस्की। जस्ट फॉर सजेशन, जैसा आपने बताया
because instead of writing there, जो मेरा ध्यान नहीं जाएगा उस पर, अगर आपने रेड कलर वहाँ पे डाला होता तो मैं attract Right, that's a good suggestion actually. I am not really sure कि वो रेड कलर में क्यों नहीं बताता है लेकिन ब्लू कलर में बताता है, ब्लू कलर में बताता है, राइट? तो क्यों बताता है, I don't know that, but I still think कि वो ब्लू कलर में भी काफी prominent है, ठीक है? तो उसका भी एक्चुअली मैंने एक्सपेरिमेंट्स होता है वहाँ पे, तो से 100 यूजर्स को रेड में दिखाएंगे और 100 यूजर्स को ब्लू में दिखा के देखते हैं कि कितना रिस्पॉन्ड हुआ, फिर उसके बाद ही ब्लू सेलेक्ट हुआ। तो ये जो आपको ये ग्रीन कलर दिख रहा है दूसरे इसका तो ये कम से कम गूगल ने 40 एक्सपेरिमेंट्स किए हैं बड़े बड़े। उसके बाद इवन टोन जो होता है कलर का, ठीक है, ब्लू में भी कई शेड्स हैं, कौन सा शेड हम यूज करें, कौन सा कलर हम ग्रीन वाला यूज करें, ठीक है, वो ब्लू लिंक्स का कौन सा कलर यूज करें, इसके ऊपर भी काफी एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, ठीक है, हर चीज पे, उसका टोन भी एक्चुअली। तो शायद ये पता चला कि ये सबसे प्रोमिनेंट है, तो हो सकता है। तो अगर आप क्रोम या फायरफॉक्स कुछ यूज कर रहे हैं तो यू विल सी अलर्ट लाइक दिस। अगर आप गलती से क्लिक भी कर दिया तो देयर इज अनदर स्टेप ऑफ सेफ्टी फॉर यू दैट गूगल प्रोवाइड्स, ठीक है। तो नेवर गो अहेड, वहां पे एडवांस में अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको यूआरएल दिखेगा, वहां पे जाके उतना सब करने की जरूरत नहीं है। नाउ वन क्वेश्चन अराइजेस, पता नहीं किसी ने सोचा या नहीं, कि भाई इफ देयर इज, गूगल को पता है कि वेबसाइट पे मॉलवेयर है या फिर हो सकता है, तो व्हाई इज गूगल शोइंग दैट रिजल्ट देयर, है कि नहीं? क्यों बता रहा है? एनी गेसेस? आपने सोचा था? पूछा नहीं, नाइंसाफी है, पूछना चाहिए ऐसे सवाल। अच्छा ओके, तो अगर आपको कुछ सवाल है तो पूछिए ताकि दूसरों को भी पता चल जाए, आपको भी क्लैरिटी आ जाए, ठीक है, क्योंकि मैं सब कुछ कवर नहीं कर सकता, आई विल डिस्कस ऑन मेनी पॉइंट्स, ठीक है। तो इफ देयर आर एनी क्वेश्चंस जस्ट फील फ्री। तो अब आप बताइए क्यों? Google is not supposed to stop us at maybe, but it does not. Maybe I don't know. Yes, so basically the thing is there are many things to it actually. तो एक चीज जो from the user side I'll tell you, the thing is अगर आप कुछ सर्च कर रहे हैं, ठीक है, and you have gone to that website before, for example, you don't remember the URL whatever, कई लोग Google को navigation के लिए यूज करते हैं, उनको जाना होता है makemytrip.com पे, वो आएंगे google.com पे and टाइप करेंगे makemytrip.com और वहां से क्लिक करके जाएंगे। This is the normal usage of many users, ठीक है। तो ऐसे लोगों के लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। What will happen if Google doesn't show that, ठीक है, उनको वो URL दिखेगा नहीं, उनको साइट में, वो जाएंगे, ओपन करेंगे ब्राउजर, खुद टाइप करेंगे, ठीक है, then they are actually in risk। अगर गूगल में हम बता दें कि भाई दिस वेबसाइट कैन हार्म योर कंप्यूटर, इट इज एन अलर्ट टू यूजर। अगर वो हम वेबसाइट को निकाल दें तो वी आर एक्चुअली हाइडिंग दैट नॉलेज दैट वी हैव कि भाई इसके पास मॉलवेयर हो सकता है, ठीक है। व्हाट इफ, अरे भाई वो वेबसाइट पता नहीं कहां गई, आई एम नॉट एबल टू फाइंड इट इन गूगल, इट विल ओपन अ न्यू विंडो, न्यू टैब, जाके खुद टाइप करेगा, ठीक है, या फिर कहीं और जाके सर्च करेगा। सो इट इज एक्चुअली नॉट यूजफुल फॉर अ यूजर, राइट। सो इट इज इंपॉर्टेंट टू शो कि यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, बताना भी जरूरी है कि नहीं? तो इसीलिए गूगल विल नॉट रिमूव इट। The other thing Google provides is basically results के बाजू में एक छोटा सा एरो होता है, डाउन एरो, ठीक है। अगर आप वो डाउन एरो पे क्लिक करेंगे तो वहां पे आपको दिखेगा कैश्ड, CACHED करके एक आएगा टर्म, ठीक है। तो वो होता है गूगल के पास, उसके खुद के पास, गूगल के डेटाबेस में वो जो वेब पेज का कॉपी है वो कॉपी, ठीक है। तो वो कॉपी में जनरली मॉलवेयर वगैरह नहीं होता है, ठीक है। तो यू कैन स्टिल गो एंड चेक दैट कैश्ड पेज फॉर पेजेस वेयर प्रॉब्लमेटिक पेजेस। अगर समझो कोई पेज 404 हो गया, ठीक है, तो गूगल सर्च में आएगा वो पेज वहां पे, even though it is not live, but you can still get the information from the cache page or the snapshot of that page, ठीक है, इस तरह से। So there are different utilities why Google actually shows that page there, ठीक है। Now this is from the other side. So Google is not only dealing with its users who are searching, जैसे कि हमने बताया कि Google is basically an agent. It is dealing with two types of people. One is the users who is looking for information. The other one is the, कौन है दूसरे लोग? Publishers जो content generate करते हैं, articles लिखते हैं, videos बनाते हैं, images बनाते हैं, etc., right? तो Google also has to take care of those people, है कि नहीं?
ताकि जो वेबसाइट पे अगर प्रॉब्लम है तो गूगल विल आल्सो गो अहेड फ्रॉम इट्स ओन साइड एंड अलर्ट द वेबमास्टर एज वेल। गूगल का जो ओनर होता है, सॉरी वेबसाइट का जो ओनर होता है, उसको भी एक अलर्ट भेजा जाता है ताकि वो अपनी वेबसाइट को सुधार ले, क्लीन कर ले, ठीक है। तो गूगल क्या क्या करता है, देयर इज समथिंग कॉल्ड वेबमास्टर टूल्स। ये एक टूल है वेबमास्टर के लिए। आप लोगों में से किन की खुद की वेबसाइट है या कोई वेबसाइट आप लोग मैनेज करते हैं? 2 पीपल, ठीक है। आप लोगों ने वेबमास्टर टूल्स के लिए साइन अप किया है? ओके, एक आपने भी किया है? नहीं किया है? आपने किया है? ओके ठीक है, गुड। अगर आपने नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि अगर कल के दिन कुछ प्रॉब्लम हुआ आपकी वेबसाइट के साथ, आपको पता नहीं चला अगर, तो गूगल को तो पता चल जाएगा मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। वंस इट नोस, अगर गूगल को पता चल गया तो ये इसके अंदर गूगल को पता है वो कांटेक्ट कैसे करें, वरना गूगल को पता नहीं होगा कि आपको कांटेक्ट कैसे करें, ठीक है। इट विल मेक सम गेसेस एंड इट मे नॉट रीच यू दैट कम्युनिकेशन। यहाँ पे क्या होता है, अगर आपने साइन अप कर लिया और आपकी वेबसाइट में वेरीफाई कर लिया तो गूगल यहाँ पे मैसेजेस भेजता है वेबमास्टर्स को, सारे वेबसाइट ओनर्स जो होते हैं। अगर उनकी वेबसाइट में अगर प्रॉब्लम दिखाई दिया तो व्हाट इट डज इज नॉट जस्ट शो द वो अलर्ट जो होता है वो सिर्फ सर्च रिजल्ट्स में यूजर्स को ही नहीं दिखाता है, लेकिन वेबसाइट ओनर को भी एक अलर्ट भेजता है कि भाई आपकी वेबसाइट में प्रॉब्लम होगी, इसको इसी तरह से फिक्स कर सकते हैं। और बहुत सारे आर्टिकल्स हैं हमारे पास, ट्रबल शूटर्स हैं जो आप यूज करके जो वेबसाइट ओनर जो हैं अपनी वेबसाइट को सुधार सकते हैं। तो ईमेल्स भी भेजता है और काफी कुछ रिसोर्सेज भी हैं हमारे पास जो यूज कर सकते हैं वेबमास्टर्स। क्या एक्चुअली क्या दिखाते हैं? वल्नरेबिलिटीज दिखाते हैं। हाँ, अलर्ट्स होता है वल्नरेबिलिटीज ऑन योर वेबसाइट। एब्सोल्युटली। तो कई केसेस में ये होता है कि हम एग्जांपल यूआरएल भी देते हैं आपकी, ये पेज पे ये वल्नरेबिलिटी, ये कोड आपकी वेबसाइट पे पाया गया है, ठीक है। जो कई बार ये होता है कि कई लोग वेबसाइट चलाते हैं लेकिन दे आर नॉट टेक्निकली savvy, ठीक है। आजकल कोई भी वेबसाइट बना सकता है। आप wordpress.org पे जाइए, वेबसाइट बनाइए, blogspot.com पे जाइए, वेबसाइट बनाइए, वेबसाइट बन गई आपकी। अगर वो हैक हो गई फॉर एग्जांपल, ठीक है, यू डोंट हैव टेक्निकल कैपेबिलिटी इवन टू नो कि आपकी वेबसाइट हैक हुई है, ठीक है। तो गूगल ट्राइज टू हेल्प एज मच एज पॉसिबल। हमारे पास बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, ठीक है, एंड द ईमेल वी सेंड वी एक्चुअली वेरी क्लियरली मेंशन कहां पे प्रॉब्लम पाया गया, प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, एंड हाउ टू फिक्स इट, ठीक है। ये सारे इंफॉर्मेशन हम लोग वेबसाइट ओनर्स को भी देते हैं। I love you वायरस। तो मैं ये जान नहीं पाया कि अभी तक ये हुआ कैसा है। अच्छा, ये काफी पुरानी बात है। आधे से ज्यादा देशों में ये हुआ था। राइट, इससे काफी आर्थिक व्यवस्था में भी हुआ। राइट। तो ये काफी पुरानी बात है। आई एग्जैक्टली डोंट नो कि इसके साथ कैसा हुआ था। दिस वाज अ वायरस। वायरस भी उसी तरह से फैलता है जिस तरह से मॉलवेयर फैलते हैं, ठीक है। तो देयर आर डिफरेंट वेज, नॉट जस्ट द, हम लोग अभी तक इंटरनेट मीडियम की बात कर रहे हैं, राइट, सर्च, ईमेल वगैरह वगैरह, राइट। वो जमाने में जब इंटरनेट ईमेल इतना पॉपुलर नहीं था, लोग यूजुअली डेटा एक्सचेंज करते थे फ्लॉपीज पे, रिमेंबर, या फिर पेन ड्राइव्स वगैरह। आज भी होता है पेन ड्राइव्स में, सीडीज में। तो दीज मॉलवेयर एंड वायरसेस एंड स्टफ लाइक दिस, ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं, मैलिशियस सॉफ्टवेयर, वो लोग अपने आप को कॉपी भी कर सकते हैं अलग अलग जगहों पे, ठीक है। अगर आपके सिस्टम पे मॉलवेयर है, आपने यूएसबी की लगाई, ठीक है, वो खुद अपने आप को कॉपी कर लेगा वहाँ पे, क्योंकि उसको पता है ये यूएसबी कहीं और लगेगी, ठीक है, और मुझे वहाँ पे भी जाना है। वो पकड़ा भी गया था। हाँ, पकड़ा गया था, आई रिमेंबर। तो ऐसा भी होता है। तो बी एक्सट्रीमली केयरफुल, नॉट जस्ट ऑनलाइन, ऑफलाइन एज वेल। आप जो भी यूज कर रहे हैं, एवरी टाइम यू पुट इन अ यूएसबी की, मेक श्योर योर स्कैनिंग सिस्टम, जो भी आपके पास सॉफ्टवेयर है, दैट इज ऑन, योर सिस्टम इज अपडेटेड। और जैसा ही आपने लगाया, एक बार स्कैन करिए उसको, इवन बिफोर यू ओपन इट, राइट क्लिक एंड स्कैन, ठीक है। वो तो उसी पे वो साइट है जो नेट यूज करते हैं। हो सकता है, मुझे उतना याद नहीं है वो वायरस के बारे में, राइट। तो शायद वो ईमेल के थ्रू भेजा गया था, हो सकता है। तो और वेबमास्टर्स जो होते हैं, वेबसाइट ओनर्स, अगर किसी की वेबसाइट हैक हो गई, ठीक है, सो वी प्रोवाइड देम विद इंफॉर्मेशन, अलर्ट्स एंड एवरीथिंग। जब वो फिक्स कर लें प्रॉब्लम्स, तो व्हाट दे कैन डू इज दे कैन टेल गूगल, ठीक है, वो जो वेबमास्टर टूल्स, जो एक टूल है हमारे पास, अगर आपने साइन अप कर लिया उसके लिए, तो यू कैन एक्चुअली गो एंड हम लोग को बता सकते हैं कि मैंने फिक्स कर लिया है। तो गूगल फिर चेक करता है वो, ठीक है, कि फिक्स हुआ, सच में फिक्स हुआ या नहीं हुआ। वंस इट फाइंड्स दैट द प्रॉब्लम इज फिक्स्ड, दे विल री-इंक्लूड दैट इन द सर्च रिजल्ट्स। फिर आपको वो वार्निंग जो बताया था, बताई जा रही थी ना सर्च रिजल्ट्स में, वो हटा देंगे, ठीक है। देन इट इज सेफ फॉर यूजर्स टू क्लिक थ्रू। तो रिमेंबर, व्हेनेवर
you see that kind of a warning, any warning, आप Google search results के पेज में कुछ भी अगर आप warning देखें कि this site may be compromised or hacked or may harm your computer, never click. How much confident you may be, ठीक है, आप कितने भी confident होंगे कि नहीं मुझे कुछ नहीं होगा, मेरा सिस्टम तो बस अच्छा है, even then don't click it, ठीक है? Okay, so a couple of resources I'll share and close. एक है google.com/good2know, ये अगर आप नोट कर ले तो अच्छा है, ठीक है? तो it's a very good resource to actually go and read. यहाँ पे कुछ वीडियोस भी हैं actually. ये resource again one of the many resources that we have for our users. तो यहाँ पे जाके आप देख सकते हैं. और एक जो वेबसाइट ओनर्स के लिए खास जो रिसोर्स हैं वो है google.com/webmasters/hacked. अगर आप सिर्फ जाएं google.com/webmasters पे तो दूसरे रिसोर्सेज भी दिखेंगे जैसे कि वेबमास्टर टूल्स हैं वो भी हैं वहाँ पे और हेल्प सेंटर भी है, सारे लिंक्स आपको मिल जाएंगे. अगर आप /hack पे जाएंगे तो स्पेसिफिकली ये बताया जाएगा कि अगर आपकी वेबसाइट हैक हो गई तो उसको डिटेक्ट कैसे करें, कैसे फिक्स करें, थिंग्स लाइक दैट. सो दीज आर द 2 रिसोर्सेज. लिख लिया सबने? ओके ग्रेट. So any last questions? So I'll just very briefly go through what we have covered. ठीक है? हमने पहले ये देखा कि why is it important to know कि Google search पे सेव कैसे करें? ठीक है? Google काम कैसे करता है? हमने लाइब्रेरी का एग्जांपल लिया. ठीक है? It was exactly like that. ठीक है? वो ऑफलाइन है या ऑनलाइन? ठीक है? वो मैनुअल है या डिजिटल है? ठीक है? Google is nothing but like a library. हमने देखा. ठीक है? It is an agent. ठीक है? फिर हमने देखा कि how people try to take advantage in malicious ways. Google search का कैसा ले सकते हैं? क्योंकि Google search पे कई लोग आते हैं, ठीक है? Billions of people, billions of searches happen. तो कैसा misuse करें उनको? ठीक है? We have seen basically उनका motive क्या होता है? Financial. ठीक है? 3 strategies अपनाते हैं वो लोग. एक होता है web spam. और इसमें हमने देखा कि web spam क्यों है, क्या है और कैसे काम करता है, कैसे Google को influence करता है, Google कैसे रैंक करता है, पेज रैंक क्या होता है. ठीक है? रिमेंबर एवरीथिंग. ये सेशन के एंड में क्विज भी है. ओके. फिर हमने देखा दूसरा टेक्निक फिशिंग. ठीक है? और कुछ लोगों ने अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर भी किया. वेरी गुड, थैंक यू फॉर दैट. और उसके बाद फिर हमने देखा क्या देखा? मॉलवेयर, राइट? किस किस तरह से वो अपने आप को फैला सकता है, क्या क्या कर सकता है. ठीक है? एंड में हमने देखा कि व्हाट इज गूगल डूइंग टू प्रोटेक्ट इट. और हमने ये भी देखा कि it is 60 trillion pages. ठीक है? तो even then Google is not backing off, right? इतना एनर्जी लगती है, इतनी रिसोर्सेज लगते हैं, लेकिन Google is like still trying to help our users and our webmasters because people need us and we also need them. Right? Without publishers, without users, there is no Google. है कि नहीं? अगर publishers ही नहीं है, users ही नहीं है, तो Google क्या करेगा? ठीक है? तो और हमने फिर कुछ रिसोर्सेज भी बताए. एनी क्वेश्चंस? गूगल सर्च के अंदर भी डेटाबेस में जो हम लोग हमारे पोर्टल को इंटीग्रेट करें तो वो कुछ कंटेंट्स को वेरीफाई करने के लिए एग्जैक्टली कंटेंट्स को वहाँ पेस्ट करने के लिए वो एक बहुत फीचर. आप गूगल वेबमास्टर टूल में अपनी वेबसाइट वेरीफाई करने की बात कर रहे हैं, राइट? तो ऐसा हैकिंग में भी हो सकता है क्या? हैकिंग हो सकता है. तो अगेन दिस कैन बी कॉल्ड सोशल इंजीनियरिंग. ठीक है? जहाँ पे आपको कॉन्फिडेंस गेन किया जाए कि भाई हम गूगल से कॉल कर रहे हैं, ये फलाना कोड आपके वेबसाइट में कॉपी करिए. ठीक है? ताकि हम आपकी वेबसाइट वेरीफाई कर सकें. बोला जा सकता है. ठीक है? बी वेरी केयरफुल. यू विल नेवर हियर दीस काइंड ऑफ थिंग्स ओवर फोन, ओवर एसएमएस और एनीथिंग, राइट? अगर आपको ऐसा कुछ करना है आपकी वेबसाइट में तो यू विल लॉग ऑन टू google.com और वहीं से आपका ये काम होगा. ठीक है? नो ह्यूमन बीइंग विल बी इन्वॉल्वड इन दिस. ठीक है? बी अवेयर ऑफ दैट. एनी अदर क्वेश्चन? क्या कर सकते हैं? सॉरी. हाँ. ओके. तो आप बहुत अच्छा सवाल, एक्चुअली वेरी गुड क्वेश्चन. तो समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज
जब आप से फॉर एग्जांपल आपके विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में आप विंडोज यूज कर रहे हैं, आप कुछ सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं रिलायबल सोर्स से, ठीक है, रिलायबल सोर्स से आप .exe फाइल, एग्जीक्यूटेबल फाइल आप डाउनलोड करते हैं सिस्टम पे, तो सडनली आपका एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो है वो पॉपअप होगा, कहेगा कि दिस एप्लीकेशन कैन हार्म योर कंप्यूटर, आर यू श्योर यू वांट टू रन इट, ठीक है। नाउ ये जो अलर्ट है ये जेन्युइन सॉफ्टवेयर के लिए भी बताया जा सकता है, क्योंकि there can be a vulnerability, there is a possibility of a malicious intent in that software, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, डाउटफुल है, ठीक है, जहां पे डाउटफुल है वहां पे नॉर्टन एंटीवायरस आपको अलर्ट दे देता है, ठीक है। तो इफ यू आर श्योर कि आपने अथॉरिटेटिव वेबसाइट से उसको डाउनलोड किया है, जैसे कि आपको फॉर एग्जांपल कोई माइक्रोसॉफ्ट या फिर लास्ट क्वेश्चन, तो या फिर से फॉर एग्जांपल पीडीएफ रीडर आप डाउनलोड कर रहे हैं, आप पीडीएफ रीडर कहां से डाउनलोड किए, adobe.com से, और आपने देख लिया बराबर कि ये adobe.com ये कुछ और नहीं है, देयर इज नो फिशिंग हैपनिंग हियर, यू मेड दैट श्योर, ठीक है, और आपने उन्हीं की वेबसाइट से डाउनलोड किया है ये, ठीक है, पीडीएफ रीडर, एंड देन यू आर इंस्टॉलिंग, देन यू आर श्योर कि यू नो द सोर्स वेयर यू हैव डाउनलोडेड दैट सॉफ्टवेयर फ्रॉम, आपको सोर्स पता है आपने कहां से डाउनलोड किया, और आपको ये भी पता है कि वो सॉफ्टवेयर एक्चुअली है क्या, you know everything about it, then it is safe for you because you have that knowledge, it is safe, then you can go ahead and ignore that warning. However, अगर आपको थोड़ा भी डाउट है, आप कोई नया सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रहे हैं, आपको पता नहीं है सॉफ्टवेयर है क्या, करता क्या है, या फिर आपको पता नहीं है कि आप पीडीएफ रीडर डाउनलोड कर रहे हैं लेकिन ऐसी वेबसाइट से डाउनलोड कर रहे हैं जिसको आपने पहले देखा नहीं है कभी, ठीक है, then you will have to be extremely careful, ठीक है। Some of the things that you can do is वो वेबसाइट का आप नाम गूगल सर्च में मार के देख लें, कोई फोरम्स में उसके बारे में डिस्कशन हुआ है क्या, राइट, या फिर कोई ऐसे प्रॉब्लम्स नोटिफाई किए गए या नहीं, ठीक है, या फिर कोई उसके बारे में अच्छी बात कर रहा है, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि देयर टन्स ऑफ पीपल, आप एक वेबसाइट का नाम है आपको पता नहीं है, आप वो वेबसाइट कभी आप आज तक आप मतलब वो पहुंचे नहीं वो वेबसाइट तक, लेकिन दैट्स अ वेरी रेप्यूटेबल वेबसाइट, ठीक है, तो उससे आपको पता चल जाएगा व्हेन यू टाइप दैट वेबसाइट मेनी पीपल विल बी टॉकिंग पॉजिटिवली अबाउट इट, ठीक है, बोलेंगे वेरी गुड वेबसाइट, ये सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर सब फ्री है, ऐसा है वैसा है, मैंने ये डाउनलोड किया, मैंने वो डाउनलोड किया, ठीक है, देन बेस्ड ऑन दोस जजमेंट यू कैन टेक अ कॉल, बट बी कॉशियस, ठीक है, एनी I think yeah everybody is hungry I think, yeah, so by the way I'm here till the end of the day, so if you have any questions not just about these things but anything to do with Google search just approach me, right? Please feel free. Okay, thank you for having me. Yes.